A very warm good afternoon to one and all present here. I, Dr. Bhavna Agrawal, on behalf of Rabindranath Tagore University, welcome you all to this webinar on World Health Day, organized by Center of Science Communication and Faculty of Science. My heartily welcome to Honorable Keynote Speaker, Dr. N. Ganesh, Consultant on Oncogenetics, Head and Senior Scientist, Department of Research, Jawaharlal Nehru Cancer Hospital and Research Center, Bhopal. It gives me great pleasure to extend a warm welcome to Director, Center of Science Communication, Mr. Pravar Roy, Dean of Science, Dr. Neetu Paliwal, HODs of Physical and Life Science Department, all faculty members, and my dear students. Now, I request Mr. Pravar Roy, sir, Director of Science of Communication, for the welcome speech. Over to you, sir. Pravar Roy, sir? Yes, madam. Yes, sir. A good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Namaskar. Yeah, our main speaker, Dr. N. Ganesh, sir, Neetu Paliwal, madam, Dean of Science, Bhavna Agrawal, madams, other dignitaries, other our Vice Chancellor, sir, Honorable Vice Chancellor, sir, Registered, sir, and all senior officials, my dear students. It again gives me an immense pleasure to welcome to this World Health Day celebrations. And you know, how do we celebrate this day? By organizing some meaningful activities like lectures or interactions, something like that. So today we got Dr. N. Ganesh, whose little resume and introduction will be given by Bhavna Agrawal. But before that, I want to say a few words without wasting much time. And I will mix up English as well as Hindi for the convenience of the students, of my students. देखिए, हम जब स्टूडेंट्स लाइफ में एक बात हम कई बार सुने थे हमारे बुजुर्गों द्वारा, जो अपना टीचर्स हो, अपना घर में जो हो, कि health is wealth. You all know this. Number of times we have heard this. Health is wealth. And then another very important thing, that if money is lost, something lost. But if health is lost, everything lost. Our headmaster used to say these things. Actually, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, हमें अपना जीवन में, लाइफ में इसको सोचना है, इसको अपनाना है, इसको समझना है. पर्टिकुलरली आज का जमाना में आप देख रहे हैं कि पूरा दुनिया, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, कितना भी डेवलप्ड कंट्री हो, कितना भी डेवलपिंग हो, या बिलो लेवल में भी हो, पूरी वर्ल्ड एक हेल्थ समस्या से जूझ रहे हैं. सो नाउ दिस टाइम आई थिंक celebrations or organizing this kind of days or this kind of activities, it gives us a much more significant. Is it? ना लेते हुए, क्योंकि इस सब्जेक्ट का बारे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो सर बताएंगे ही. बट थोड़ा सा एक सोचिए कि देखिए, डेवलप्ड कंट्री में इतने सारे साधन है, दे आर मच मोर डेवलप्ड इन एवरी रेस्पेक्ट, इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इन देयर फैसिलिटीज वाइज. सर अनम्यूट हो गए, भावना मैडम अनम्यूट हो गए, अनम्यूट कराइए. हेलो, उनको अनम्यूट करवाइए मैडम, आपकी तरफ से हो जाएगा. कॉल आई है साहब, आइदर सर. हाँ, I'll call him. Let me call. उस रूम को फ्यूमिगेट करो. Hello, sir. You have mute. Okay, sir. Link cut. Okay. Okay. Okay, sir. He's saying some technical problem is there. That's why link has been cut. You must read. Okay. I hope
you can call IR sir to be there in present, like in his office, so that he can manage things. He is in contact with me. Prabal Roy sir is contact. और शैलेश भावना मैडम तब तक आगे आप प्रोसीड कर दीजिए जिससे कि टाइम बाउंडेशन ना रहे। ओके जी ओके ओके sir. हेलो सर Yes. Now it has joined, no? Yeah. Actually, जो मैं बोल रहा था कि where we are lagging, actually, according to me, we are lagging only in one point, that is our awareness. हमारे कंट्री में जो जितने भी पॉपुलेशंस तो इतने ज्यादा हैं, लेकिन अवेयरनेस जो मामला है वो कम है। यू नो दैट टेक्निकल नो हाउ और ब्रेन और द नॉलेज, इसी मामला में हम कभी कम नहीं है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स तो पूरी डेवलप्ड कंट्री में, अमेरिका में बोलिए, यूरोप में बोलिए, पूरी दे आर बेसिकली रूलिंग। तो फिर हमारे देश में हेल्थ में क्यों पिछड़ा है? दैट इज ओनली द अवेयरनेस। सो व्हाट यू कैन डू अवेयरनेस के लिए, हम this kind of program by Organization of World Health Day and some other activities, some social activities. So throughout the year, it's not only on the health day, throughout the year you can do. Then only I think we can stand behind those people who are much more ahead than us. So Hello, can you hear me? Hello. Hello. वेस्ट ना करके अभी भावना मैडम, वो तो पूरा पढ़ना संभव नहीं है, तो बट आई विल रिक्वेस्ट भावना मैडम। Okay, I'm continuing. Yeah. Thank you so much, sir. Okay. Now, Dr. N. Ganesh is presently working as a consultant on genetics. Hello, some echo problem is there. Hello, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, बोलते जाइए। Okay, right. हाँ, वो बीच बीच में आएगा, कुछ कर नहीं सकता, यू कैन कंटिन्यू। Dr. N. Ganesh is presently working as a consultant on oncogenetics, senior scientist and head department of research, Jawaharlal Nehru Central Cancer Hospital and Research Center, Bhopal since 1996. He earned his PhD degree in anatomy from Gandhi Medical College, Bhopal. He got trained from AIIMS New Delhi, Tata Memorial Mumbai, St. John's Medical College, Bangalore, Kidwai Institute of Oncology, Bangalore, Kasturba Medical College, Manipal, Southwest Foundation of Biomedical Research from USA. He got 3 patents to his credit. He discovered active constitutes against skin melanoma from Jalkumbay. Dr. N. Ganesh is the first in the world to develop in vivo orthotropy colon tumor model in mice for targeted anti-cancer drug delivery. He has participated more than 232 scientific papers at national and international conferences. Under his supervision, 21 PhD scholars and 375 PG theses has been guided for 7 national universities. He has been honored with numerous national and international awards, including especially the National Award for Genetic Oncologist of the year 2020. He honored international books, and he is scientific editorial board member of many national journals. He visited Sweden for an international project or drug trial on locally advanced breast cancer. He delivered his lecture in an international conference on environment research. Apart from these, he received many awards in fine arts and classical dance. Now, I would like to invite Dr. N. Ganesh for the speech. Over to you, sir. Sir, please.
Yeah. I request. Good evening, everyone. Namaste, Proval sir, Bhavna madam, and Neetu madam. I'm thankful to the RNTU Honorable Chancellor and Vice Chancellor who has given this platform, especially thanks to Dr. Prabal Roy. I remember you invite me for AIDS Day, No Tobacco Day, and World Cancer Day. This is the first time I'm talking on this platform. It is one of the best for today's scenario because, as you know, that we are facing a lot of problem in the world, and still people are not aware. The partially we educate people, and हम विडम्बना है कि हम पढ़ने के बावजूद अवेयर होने के बावजूद भी हम जागरूक होने के बाद भी हम कैसे अपने आप को ओवरलुक करते हैं चीजों से. Otherwise, the second wave of COVID not happened. लॉकडाउन का स्थिति फिर से आ गया है. Today 7th of April. In the year 1948, this has been taken a place by WHO. इसको 1950 में ऑनर किया. 7th of April को they are going to have this day will be marked as a World Health Day. There was many events happened. There is a long journey of slogans and themes of World Health Day, World No Tobacco Day, World Cancer Day. So many we not celebrate, but we remark for these days. But what happened? How many we are aware? There is a question marks. I am once again thankful to RNTU who had given this platform to me to make myself understand and others too, like where the points are lacking behind. Whether we Homo sapiens, हम इंसान लोग को अवगत नहीं है चीजों से, यदि है तो विडम्बना क्या? सोच और समझ का ये परिवेश है और आज बहुत कठिन वक्त आ गया है पूरे वर्ल्ड में. It is not a panic situation, but it is alarming situation for healthcare. Who is struggling? The healthcare specialists, the frontline warriors, the doctors, the clinicians, the junior medical officers, the nursing staff, the technicians, and then the police walls. Everyone is fighting to save the world population, the individual from this pandemic here and disease. प्रभाल साहब ने समझा, सोचा आज का दिन मुझे बोलना चाहिए, तो मेरे पास I have two specialty to talk about this particular issues. WHO is again putting a big alarm for cancer awareness, and now this pandemic virus. We never thought 2021 and 2020 is going to be a drastic year for us, for our children. The academics being lost, the big gap between the academic and the brain system, the online classes, the hazardous again, the sonic waves going to create. The health is going to affect everywhere. As Sarah told, if the money is lost, something is lost. If health is lost, everything is lost. Everything. Again, money, पैसा आज नहीं तो कल कमा लेंगे. एक बार डिसीज होके डिसीज्ड हो जाए आप तो फिर तो बड़ा मुश्किल है. सोचने का वक्त भी नहीं मिलता. मैं आपको बहुत सारी चीजों से अवेयरनेस कराऊंगा, खासकर दो प्लेटफॉर्म में. एक तो कैंसर के, हम कहाँ हैं और क्या होना चाहिए और क्या सावधानी करनी है. दूसरा पैंडेमिक ईयर का जो वायरस है अभी कोरोना क्लास का, उसके बारे में क्या करना है, कैसे रोकथाम कर सकते हैं और हमें दायित्व क्या निभा रहा है. दैट इज आई होप. मैं रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर प्रबल रॉय ने कि मैक्सिमम आप हिंदी में बोलें, क्योंकि आपके जो स्कॉलर्स हैं बिहार से हैं, दूर दराज गाँवों से हैं, तो उनको शायद इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम. मेरी कहीं त्रुटियां हो तो मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के. मैं दक्षिण भारतीय हूँ, कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये चीज है. ना অনেক আগে এখন অনলাइन চলছে ঘরে না বাইরে. This is what things slogans मिलता है, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं. Every platform, whether it is a media of paper, media of voice, media of anything, everyone day in day out, every second
microseconds. Every responsible person is requesting to wear the mask. मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इस डे को भी सेलिब्रेट करना चालू कर देंगे. The 30th of December 2019. That was the first day I had been interacted with COVID-19 infection. क्या होगा आगे मालूम नहीं, लेकिन WHO ने हेल्थ डे जब डिक्लेयर किया 1950 में, और 1990 का स्लोगन था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू एवरीवन एंड एवरीवेयर. Everyone has to get the health insurance, health care, and regular weekly or monthly checkup for the health. मुहिम चालू हुआ, आशा वर्कर्स डेवलप हुए बहुत ज्यादा. आप देखेंगे 2019 एंड 20 के स्ट्रीम में आशा वर्कर्स को ज्यादा चांसेस मिला है. एंड द पेरिफेरल districts and villages has been benefited by this आशा वर्क. They had been trained by the clinician, then they posted there. हो गया, कुछ फायदा हुआ नहीं. कैंसर उतना ही बढ़ रहा है और पेंडेमिक में कोविड को रोक नहीं पाया. No fun of universal health coverage, everyone and everywhere. Then COVID आ गया 2020. See the magic, 7th of April और COVID डिक्लेयर हो गया था 30th December में. The front line really support workers are nurses and the midwives. Doctors, clinicians are no doubt working hard, but mainly nursing care में ये लोग ही रहते हैं front line. They are requesting, the WHO requested, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा है सबसे कि इनको सपोर्ट करो, इनको सुनो, इनकी सावधानी आपकी सावधानी है. क्या हुआ? The peak of COVID virus infected cases being increased, death toll was increased, media had hide on some of the data, and in general, we know what is the fact. This year, they fed up. They said, we have to build a fairer and healthier world. अभी रिसेंटली एक पेपर आर्टिकल पढ़ा हुआ आपने कि हाइड्रोक्लोरोक्विनोन को बहुत अच्छा ड्रग बोला जब कोविड आया, और गवर्नमेंट ने भी रिफ्यूज किया सब. ऑल ऑफ सडन लास्ट वीक में एक रिपोर्ट आता है यूएसए से, एंड वो बोलता है कि दिस इज अ फेलियर ड्रग फॉर कोविड-19. चिंतित में विषय पूरा वर्ल्ड, जो डॉक्टर्स ने स्ट्रगल किया एससीटी को फाइंड करने में, एंड फाइनली मालूम चलता है वो ड्रग वैलिड नहीं, तो उन्हें पूरा खोजबीन किया और मालूम चलता है जो 80 इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में पब्लिश हुआ डाटा जिसने खंडित किया हाइड्रोक्लोरोक्विनोन को, वो फेक था. कोई भी लिटरेचर मैच नहीं किया. जो हॉस्पिटल में सर्वे किया वो हॉस्पिटल का वजूद नहीं. दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक. इसलिए WHO ने बोला कि सच बोलो, हमें एक हेल्दियर वर्ल्ड देना है सोसाइटी को, सच बोलो. उसी मुहिम में आई एम थैंकफुल डॉक्टर प्रबल रॉय टू यू and to your team, Bhavna madam, Neetu madam, who had thought to have this talk right now to this. सर ने बोला था गणेश साहब आपका फील्ड है, उसी में अपन बात करें. WHO का हेल्थ का डेफिनेशन है कि हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारे लाइफ में हम हेल्दी फील करते हैं. तो WHO बोलता है हेल्थ इज द कंप्लीट हॉस्पिटल, मेंटेनेंस, सोशल वेलबींग, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी. केवल डिसीज का एब्सेंस होना इज नॉट. कोविड-19 का आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आना, थ्रेशोल्ड वैल्यू कम होना इज नॉट अ क्वेश्चन. आप कितना सोशली, मेंटली, फिजिकली आप हेल्दी हैं, दैट इज द क्वेश्चन. आप हेल्दी हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, नथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग टू वेयर द मास्क. Nothing is going to wrong to have this sanitizing. प्रॉब्लम क्या है कि हम ठीक हैं तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते. जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर को गॉड मानते हैं. मेरा रिक्वेस्ट है आज के दिन आप सभी से, आप जो भी श्रोता है उनसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपने गांव में जहां जहां है वहां मैं जो बता रहा हूं उसको कम्युनिकेट करेंगे प्रॉपर. प्लीज, if I am and I will. This is a slogan made by
this year by WHO for Cancer Day. यदि मैं कर सकता हूं तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का स्लोगन था मैं कर रहा हूं तो आप भी करिए, इफ आई कैन देन यू कैन। वो स्लोगन काम नहीं है, इसलिए अवेयरनेस का काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं करूंगा और करते रहूंगा। I am going to do it, I am doing it, I am going to do it forever. I am not bothered who is going to do it or not. यदि मुझे मास्क पहनना है तो मैं पहनूंगा। If I tell people to have a 2 mask, so we sincerely wear 2 masks. If I say to sanitize the hand, so we do it. I don't know how is going, people are going to follow it, लेकिन अभी समय का सोचने का समय नहीं है। There is no time left. It is not the hike. It is a peak time to understand the depth of health. यदि जीवन रहेगा, आत्मा जीवित रहेगी शरीर में, शरीर उसको एक परिपक्व रूप में लाके खड़ा करेगा तो वो हेल्दी लाइफ कहलाएगा। अदरवाइज वो आत्मा और शरीर का बिछड़ना स्वाभाविक हो जाएगा और बन जाएगा। प्रोग्रेस पॉसिबल है, नॉट फॉर द डिसीज प्रोग्रेस, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ प्रोग्रेस। हेल्थ प्रोग्रेस, एक हेल्थी लाइफ प्रोग्रेस, मैच्योरिटी, अवेयरनेस इज पॉसिबल इफ यू कैन डू इट। हर इंडिविजुअल मैं कर सकता हूं, करूंगा करके स्लोगन को नाप ले अपने दिमाग में, तो मेरे ख्याल से ये सार्थक हो जाएगा आज का हमारा वेबिनार। क्या क्या मैं कर सकता हूं? मैं हेल्थ लाइफ स्टाइल के बारे में बात कर सकता हूँ, हेल्दी फूड के बारे में बात कर सकता हूँ, क्या क्या सपोर्ट कर सकता हूँ बता सकता हूँ, कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ इस पूरे जर्नल को, डिसीज नॉट कैंसर, सो मेनी डिसीज, कैसे वॉइस रेज कर सकता हूँ लोगों को समझाने के लिए, कितने अवेयरनेस प्रोग्राम, जरूरी नहीं है वी माय ऑनरेबल सीईओ मैडम श्रीमती दिव्या पारेख, वाइब्रेंट लेडी आई फील इन माय लाइफ स्ट्रीम, सो यंग, डायनेमिक, होल्डर द फ्लैग एंड she said कि हम पेंडेमिक में 1000 कैंप करेंगे। बहुत मुश्किल था, पेंडेमिक होने के पहले तक हमने 18 मार्च तक 2020 में 53 मेरे डिपार्टमेंट ने कर दिया था, ऊपर भी बाकी डॉक्टरों ने किया था। लेकिन वेबिनार के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, इट वाज डन एवरीवेयर। ऑलमोस्ट 1000+ कैंप कर चुके थे, टॉक अवेयरनेस प्रोग्राम कर चुके थे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें टीम वर्क करके मिलके काम करना पड़ेगा, तभी आई कैन एंड वी कैन का फॉर्मूला मैच करता है। अब देखिए हाइट ऑफ अवेयरनेस क्या क्या हो सकता है, क्या क्या विडंबना हो सकता है। मैं पहला कवर करूंगा कैंसर को, फिर जाऊंगा कोविड। आपको बोर करूं तो मुझे बताइएगा, मैं आई स्टॉप माय टॉक राइट। ये इस वर्ष का आकलन है, अनाकड़े हैं। 20 लोगों में से पूरे विश्व में 17 लोग हर मिनट कैंसर से मरेंगे। बहुत मुश्किल है। आप सोचो, मतलब ये डर का विषय है कि 20 में से 17 लोग, मैं नहीं बोल रहा हूं, WHO ने डिक्लेयर किया वर्ल्ड कैंसर डे के एक दिन पहले रात को ये डाटा डिक्लेयर किया। बहुत मुश्किल है कि 20 में से 17 लोग हर मिनट कैंसर से ग्रसित होंगे। ऊपर डाटा वाटा छोड़िए सर, वो मिल जाएगा आपको हर जगह। हम एशिया के रहवासी हैं, एशिया के भोपाल में रहने वाले रहवासी, जो भारतवर्ष का मध्य राज्य में एक हृदय के अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा स्टेट डिस्ट्रिक्ट है। विडम्बना ये कि हम पूरे वर्ल्ड में, ये WHO बोलता है, मैं नहीं बोलता, 43% ओरल एंड हेड नेक कैंसर को देते, कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो जाता कहां से? भोपाल से। ये जो बीच में फोटोग्राफ है, डॉक्टर आई रिमेम्बर डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी उस समय हमारे ही थे, अभी टाटा में है। उनके जमाने का ये फोटो है, WHO ने एक्सेप्ट किया है, ये फोटो हमारे ही का है। एक टीचर है जिनको मुंह से ही बोलना है, व्याख्यान अपने होठों से देना है, जुबान का यूज करना है, और वहीं का कैंसर लेके घूम रहे। तो किसको अवेयर करूं मैं? पढ़े लिखे शिक्षित इंसान को। ये एक टीचर है। दूसरी, ब्रेस्ट कैंसर का आप टिश्यू देख लीजिए, इट इज पेनफुल।
तो अवेयरनेस सर, मैं प्रबल साहब किसको करूं? बहुत मुश्किल है कहना कि मेरे ये व्याख्यान से लोग समझेंगे, सुधरेंगे, क्योंकि जो माइक में नहीं सुन पा रहा, पेपर में पढ़ के नहीं सुन पा रहा, व्हाट्सएप मैसेजेस से नहीं सुन पा रहा, ये मेरा ड्यूटी है, फर्ज है, मैं बोलूंगा, आज नहीं हर सेकंड बोलूंगा। आप में से कितने लोग को समझना है समझ लीजिए, ये भयानक रूप आप लाइफ में ना देखें, मेरा ईश्वर से प्रार्थना रहेगा हमेशा। ये तो डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी अच्छे से जानते होंगे, लेफ्ट साइड का एक मुखिया है गांव का था, मतलब गड़ा कोटा सागर। शाम को डॉक्टर नित्या बिसारिया थी एनेस्थोलॉजिस्ट, डॉक्टर रेखा श्रोती थी मेडिकल ऑफिसर, नीचे सर्जिकल वार्ड में ज्यादा नहीं हुआ करते थे, डॉक्टर सुनीता यादव भी थी। मेरा लैब नीचे था, उस समय ज्यादा डॉक्टर नहीं होते थे, तो मैं असिस्ट करता था काफी कुछ। डॉक्टर पंकज ने 6 बजे, हम लोग साथ ही जाते थे, एंड ही कॉल्ड कि गणेश तू जल्दी आ जा। द मोमेंट आई केम आउट फ्रॉम माय रूम, सर आईसीयू के, सर्जिकल आईसीयू के सामने खड़े थे। ये पेशेंट गमछा लगाए, पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी जो मुखिया है गांव का, वो गमछा घुसा करके यहाँ रख के खड़ा हुआ था। सर ने बोला गणेश टर्पिन लिया तेरे पास रखा है? मैंने हाँ सर अच्छा। मैं लाया, कॉटन में, स्टेराइज कॉटन बॉल में सो के, अभी वी डोंट हैव टाइम कि हम ओटी में ले जाते उसको, क्योंकि कंडीशन बहुत पैथेटिक था। जब गमछा निकाला, इट वाज टेकिंग हर आउट, फ्लड ऑफ मेगट्स, फ्लड मतलब भूचाल, बाढ़ आ गया, इनका मेगट्स, कीड़ों का, सफेद सफेद इल्लियों का बाढ़ आ गया था। सर के चप्पल में लैब स्लीपर पहने थे, मैं लैब स्लीपर में था, हमारे उनके ओटी कोट में, मेरे लैब कोट में पूरा फैला हुआ कीड़े इल्लियां, ऊपर मारते नीचे मारते, क्या करते मालूम, फिर समाओ मैनेज। मैं ये पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम कितने शिक्षित। ये इटारसी के कैंप में एक डॉक्टर है, होप पे डॉक्टर, बोलते अच्छे से, सब कुछ अच्छा बोलते। उस दिन भी आए थे हेल्प करने, राठी इंस्टीट्यूट में, वहां एक हॉस्पिटल था प्राइवेट, अब गवर्नमेंट ने ले लिया उसे। इटारसी के लॉयंस क्लब ने, दे इनवाइटेड मी फॉर टॉक एंड कैंप, एंड देयर आई फाउंड दिस। बहुत मुश्किल है, एक इंसान टीचर है, एक इंसान डॉक्टर है, एक मुखिया है, एक और टीचर है महिला, और पढ़े लिखे शिक्षित लोगों में ये बीमारियों को इस प्रकार से अवेयरनेस, हेल्थ के बारे में चिंतित। WHO डेफिनेशन बहुत अच्छा देता है कि हम डिसीज फ्री हो जाए, हमारा तंदुरुस्ती आ जाए, हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़े, हमें किसी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े, तो एक हेल्दी लाइफ होता है। मेरे ख्याल से हेल्दी लाइफ डिफाइन इज हमारे ब्रेन को अच्छे से विकसित करना, हमारे सोच समझ को अच्छे से उस परिपक्व रूप में डाल के, सवार के लोगों तक समझाना। डॉक्टर सिगरेट पी रहा अच्छे से बैठ के, टीचर सिगरेट पी रहा और सामने वाले को बोलता है सिगरेट मत पियो, कहाँ से सोच, कहाँ से हेल्दी लाइफ? बहुत मुश्किल है, इसको तो समझना पड़ेगा। इट्स वेरी पेनफुल। WHO का लास्ट दिस ईयर का फोटोग्राफ है, अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ, अवार्ड मिल गया इस फोटोग्राफर को। शेम ऑन दैट फोटोग्राफ एंड शेम ऑन एवरी फर्टिलिटी हु हैड बीन इन्वॉल्व टू हैव दिस क्लिप। डिलीवरी के दौरान में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोकेशन में एक मदर डेथ होती है डिलीवरी के समय, COVID-19 इन्फेक्शन से। उसका बच्चे का हाथ आप ऐसे संजोड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, बहुत कस के पकड़ा हुआ है, मतलब मैं आपको दिखाऊं तो जस्ट वेरी टाइटली होल्ड। फोटोग्राफ का ये था कि उस मातृत्व की फीलिंग उस बच्चे में, माँ के लिए कितना स्ट्रांग है, वो कंसेप्ट था। अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना, वेयर टू पुट, व्हाट नॉट टू पुट, अवेयरनेस का यहाँ पर भी जरूरी है। यहाँ पर मदर है, देखिए 3 सेटअप में है, 2 मदर स्ट्रगलिंग इज ए कैंसर चाइल्ड, और एक मदर सेंटर में। कितना पेशेंस होगा उस मदर में, अवेयर्ड है चीजों से, लेकिन कितना विडम्बना विवश कि हम कुछ नहीं करते। सोसाइटी को यदि इसी रूप में बनाना है तो कुछ नहीं करते। ये भी मेरा इटारसी कैंप का है, इसमें हमारे आयुष ग्रुप के डॉक्टर्स हैं हमारे पास, हमारे ग्रुप के साथ गए थे, लोकल भी और यहाँ से आयुष ग्रुप से भी बच्चे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी गए थे। सिंपली दे आस्क्ड सर हमारा भी तो कर लो चेक, एंड वी फाउंड अर्ली। यहाँ पर सैंपल लाया गया,
यहाँ हमारे पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर रितु सिंगल मैडम, डॉक्टर रचना वाइब्रेंट, ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, दे रिपोर्टेड इट इज कैंसर। उनको मालूम ही नहीं था। अवेयरनेस की दुविधा देखिए कि हम इंसान नॉर्मल था अभी तक, एक पल एक क्षण के पहले, और हमने एग्जामिन किया, उसको बोला बायोप्सी करा लो, बायोप्सी तक नॉर्मल, लेकिन रिपोर्ट के बाद क्या हालत हुआ होगा, कितना कोसा होगा कि यार हम क्यों चले गए वहां पे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें डरना नहीं चाहिए। अवेयरनेस जहां हद क्रॉस कर जाए, उस हद तक क्रॉस करके अवेयरनेस को डिफाइन करना चाहिए। यदि हम सोचने लग जाएंगे इनको बुरा लगेगा, उनको वो लगेगा, ये लगेगा, तो कुछ नहीं लगने वाला। हम जैसे हैं वैसे रहे। डब्ल्यूएचओ का एक और, आप बहुत लोग एजुकेटेड लोग होंगे इसमें, कई डॉक्टर्स भी सुन रहे होंगे, आप गाइडलाइंस देख लीजिए और साइन सिम्टम देख लीजिए कैंसर का। विडंबना ये कि कोई भी कैंसर स्पेशलिस्ट, इतने बड़े बड़े नाम जो सोशल सर्विस कैंसर के लिए टाटा मेमोरियल हो, मेरा इंस्टीट्यूट हो, कहीं कभी किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। मेरे लेटर्स करीब 7-8 लेटर्स मेल कर चुका हूँ जब मैं डब्ल्यूएचओ कोऑर्डिनेटरशिप में था, टबैको एसोसिएशन। उनके उसमें साइन सिम्टम में पहला साइन है द सोर दैट डज नॉट हील, दैट्स ऑल। इतने में खत्म कर दिया। ऐसा चोट जो ठीक नहीं होता, ऐसा घाव जो ठीक नहीं होता, वही कैंसर का होता है। मैंने लिटरली इसे कंडेम किया। अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, हेल्थ डे के दिन बात कर रहा हूँ। ये भी एक पेशेंट है, डॉक्टर बी सेनल, हमारे देहरादून फाउंडर डायरेक्टर की ओपीडी में ब्रेस्ट कैंसर कोऑर्डिनेटर था डब्ल्यूएचओ अपना इलाई लिली का। तो मैं उनके ओपीडी में बैठ के फॉर्म फिल कर रहा था, सर डायरेक्शन दे रहे थे, पीआई थे सर। तब ये पेशेंट आया तो बोला गणेश एक लिप पेशेंट है, तेरा कैमरा ले। मेरे पास तो कैमरा होता था और कहीं नहीं, पूरे हॉस्पिटल में मैं ही फोटोग्राफी कर। मैं कैमरा लेके गया, सर बोला गणेश इसका बायोप्सी करना है, निशलानी मैडम को बुला, डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट थे। तो शी वॉज नॉट देयर, सर ने बोला चलो मैं ही ब्रश कर लेता हूँ, ब्रश बायोप्सी ले। तो लिप्स को स्टरलाइज गॉस पिच से पकड़ा सर ने और आग बंद कर लिया। तो मैं भी आग बंद करके बैठ गया कुछ सेकंड। जब हमने ओपन किया आग, तो सामने दिखता है कि वो नॉर्मल पेशेंट बैठा हुआ। मैंने पूछा उससे कि भैया आपको दर्द नहीं देता? बोलता ना, कछु ना। मतलब पानी पीते हो, खाना वाना खाते हो कि नहीं? बोले सर पानी भी बात है, खाना खा बात है, पानी भी पीता हूँ, खाना भी खाता हूँ। मतलब दर्द नहीं देता? नहीं सर, पिराता नहीं है। उस दिन क्लिक किया इसका मीनिंग क्या है कैंसर का। काय को स्टेज 2 स्टेज 3 के बाद कैंसर पेशेंट हमारे पास आता है, क्योंकि हेल्थ के लिए अवेयर नहीं है इंसान। फोड़ा हो रहा है, फुंसी हो रहा है, जब तक दर्द नहीं देता हम जानबूझ के अपने लाइफ को जोखिम में डाल के डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमें जब पेन चालू हो जाता है तब जाके डॉक्टर को अप्रोच करते। विडंबना यहीं से चालू होता है। नहीं तो ये सब डे वाइज सेलिब्रेशन का जरूरत नहीं था, इसको मार्क करने का जरूरत ही नहीं। हर रोज हर दिन अवेयर होना चाहिए, अवगत होना चाहिए हमारे पर्सनल हेल्थ के लिए। ये पेशेंट स्टेज 3 में था, दर्द नहीं दे रहा था, तो मैंने स्लोगन इसका साइन सिम्टम चेंज किया, अ सोर दैट डज नॉट हील एंड डज नॉट गेट पेन। ऐसा चोट जो ठीक नहीं होता और दर्द भी नहीं देता, वही छाला, वही घाव कैंसर का हो सकता है। मुंह कितना कम खुलना चाहिए, लोगों का खाते जा रहे हैं तंबाकू, दांत खुलता भी नहीं, ठूसते जा रहे हैं। दाल को रोटी में डुबा करके खाते जा रहे हैं। अवेयर हैं हम कि हमें भूख लग रहा है, हमें खाना है जीवन यापन करने के लिए। लेकिन हम इतने अवेयर हैं कि हमारा 4 उंगली मुंह जो खुलता था वो 1 में आ गया। हम कितने अवेयर हैं? मैं कैंप गया था पूरे, वहां पर एक एमएस डॉक्टर था, एमबीबीएस एमएस। उस डॉक्टर को भी मैंने देखा खैनी खाते हुए, और खुद का मुंह इस हाई ग्रेड लेवल 5 सबम्यूकस फाइब्रोसिस +5 इस सबम्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह का कम खुल। एंड वो मेरे कैंसर अवेयरनेस में ऐसे कंसल्टेंट बैठा हुआ है। मैं उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज जो जो मेरी आवाज सुन रहा है, जो आदत आप नहीं करते वही आदत के लिए फोर्स कर रहे हैं, दूसरे भी नहीं कर रहे हैं। जो आप बैड हैबिट्स रखते हैं, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश मत करो। दूसरा, गठान मतलब शरीर में कहीं भी गठान हो वो कैंसर का, नो। अगेन ये रूल चालू होता है कि
जो गठान आपको दर्द नहीं देता उसको दो रूप में देखो, एक पिलपिलापन दिखेगा, एक घूमता हुआ फिरता हुआ, इट इज गोइंग, इट्स नॉट लाइक इट्स मोबाइल, यहाँ वहां फिर रहा है, तो लाइपोमा हो सकता है, वो कैंसर का नहीं। लेकिन ऐसा गठान जो एक ही जगह है, दर्द नहीं दे रहा है, एक ही जगह स्थगित है, फिक्स्ड है, एंकर्ड है, विद रफ पेरिफेरी, खुरदरापन है, छू के देखने से, आप ऑयल लगाइए, सोप सोल्यूशन लगा के गोल घुमा के देखिए, यदि पकड़ने लायक है वो गठान, तो आप गोल घुमा के देखिए, खुरदरापन दिखेगा, इररेगुलर सरफेस दिखेगा, दर्द नहीं देगा। यही आपको जाके डॉक्टर को दिखाना इमीडिएटली, सर ये कैलकेरियस लग रहा है, मुझे लगता है इट इज समथिंग रॉन्ग, मुझे दर्द भी नहीं दे रहा, फिक्स है, एफएनएसी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करा ले, बहुत इजीली होता है। नीडल एक चींटी काटने के बराबर का दर्द होगा, आपको 1-1.5 दिन 2 दिन 24 घंटे अंदर रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा, वो डर से आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। बहुत जरूरी है कि ग्रंथियां कहाँ दे। एक स्तन कैंसर विडंबना सोच का समझ कर कि मर्दों में स्तन कैंसर नहीं होता। हमारे इंडिया में स्तन ब्रेस्ट सब चेस्ट मसल्स करके बात करते हैं, यूरोपियन कल्चर, चेस्ट मसल्स, जिम जाते हैं बच्चे, बड़ा अच्छे से डोले शोले कमाते हैं। मेरे यहाँ पर मैं जितने कैंप करता हूँ, मैं इन्फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हूँ, यहाँ पर जेनेटिक एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास मैक्सिमम जिम वाले आते हैं गायनेकोमेस्टिया, प्रोटीन खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें ग्रीन स्पॉट है, वेजिटेरियन है। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द फैक्ट। मैं दिखाऊंगा क्या आगे, इसके बारे में बात करूंगा, अवेयरनेस के बारे में, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। गठान कहीं पर भी हो, पेनलेस है, खुरदुरा है, फिक्स है, कड़कपन है, वही कैंसर का हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाए। जो दर्द देता है डे 1 से, फीवर के साथ आता है, पेनफुल बॉडी पेन के साथ आता है, हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस, हो सकता है निमोनाइटिस हो सकता है अल्सरेटिव कुछ लीजन हो सकता है आपको निमोनाइटिस हो सकता है आपको एड्स हो, उस समय भी ऐसे दिखेगा प्रेजेंटेशन। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल भी हो जाता, मतलब हिलता है, एंकरिंग नहीं होता बेसिकली। तो यू हैव टू फाइंड डिस्चार्ज, कहीं से भी ब्लड डिस्चार्ज हो, वो कैंसर का हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपको देखना पड़ेगा ब्लड डिस्चार्ज कैसा है। सर्वाइकल ब्लड डिस्चार्ज है, डॉक्टर को जाके दिखाए, 1 दिन 2 दिन 4 बार 20 बार, जब भी ये ऐसा होता है डॉक्टर को कंसल्ट करें। इनको अदर प्लेटलेट एब्नॉर्मलिटी के कारण भी आ सकता है, डेंगू में होता है जैसे। तो डोंट कीप सच थिंग इन योर होम प्लीज। आज अवेयरनेस का दिन है, लेकिन मुझे लगता है हर सेकंड प्रबल सर, हमें हर सेकंड अवेयर होना पड़ेगा और बच्चों को समझाना पड़ेगा। ठीक है, कितने अवेयर हैं हम? जिम जाने वाले अपने टवल लेते हैं, पार्लर जाने वाले कुछ नहीं लेते। पार्लर वाले उसमें ट्रस्ट हो जाता है हमें, पार्लर वाला बेडशीट टॉवल्स जो भी एसेसरी यूज करेगा वो बहुत हाइजीन है। बार्बर शॉप में जाओ, बड़े शिद्दत से बोलते हैं, रेस्पेक्ट से बोलते हैं बार्बर को कि ब्लेड चेंज कर देना, रेजर को डिटॉल में साफ कर देना, गर्म पानी में कर देना। हाइजीन तो है ना, टॉवल सूखा तो है, हाँ यस सर, उस सूखने के बाद कड़क सा दिखता है, अपन छूते हैं, हाँ सूखा हुआ। वो कान के पास आके ब्लेड को तोड़ता है दिखाने के लिए कि ब्लेड फ्रेश। हम भूल जाते हैं जो टवल यूज करता है वो, उसी में वो शैतान बैठा हुआ है, जो वाटर बॉर्न डिसीज, बार्बर डिसीज का नाम, एक वायरस होता है एचपीवी, जिससे सर्वाइकल कैंसर इज वेरी कॉमन। घोड़े के बाल से बांध दो, किसी के बाल से बांध दो, बीबी के बाल से बांध दो, मैंने देखा अगरबत्ती जला दो, व्हाई दिस ऑल नॉनसेंस? गो टू ए डर्मेटोलॉजिस्ट, एक चर्म रोग के स्पेशलिस्ट के पास जाए, बताएं यदि सॉफ्ट है मसा, कोई टच नहीं करना, इसे बेनाइन। यदि ये प्रिकली पॉइंटेड वाला है, दैट इज इंडिकेशन दैट इज एचपीवी। वहां जाए, डॉक्टर से बोले कॉटरी कर दे, जला दे, या पोडो वॉट करके इसका सोल्यूशन आता है, या 5% 2% ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल सकते हैं, थूजा करके होम्योपैथ मेडिसिन आता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अवगत क्या होना है कि हमें मसा देखना आना चाहिए। नहीं तो जो ऐसे मेल पोस्ट मैरिटल लाइफ या लिव इन रिलेशन में ऐसे मसे रख के अपने काउंटर पर साथ फिजिकल रिलेशन करते हैं, इन फ्यूचर व्हाइट डिस्चार्ज होता है, लिक्यूरिया, दैट इंडिकेट्स दैट शी हैड अ प्रॉब्लम, और बाद में सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि ये टाइप 16 17 18 के कारण होता है।
आपको नहीं मालूम ना ये कौन से टाइप का है. Don't challenge yourself. If you have this lesion on your surface anywhere, no, on your body surface, please consult your dermatologist. I'm right? मैं आप लोग को बोर तो नहीं कर रहा हूँ? नीतू मैडम, भावना मैडम? No, sir. Okay, fine. अवगत और क्या करना है? बड़े बड़े स्लोगन में आप पाउचेस में तो परेशान हो गया. मतलब आई एम फेड अप विद दिस ऑल बिजनेसमैन. पाउच में अच्छे से डायग्राम बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, उसमें लिखा जाता है कि ये कैंसर कारक है. कई स्लोगन में ये सब भी लिखा जाता है, बीड़ी में ये पाया जाता है. अरे ये सब खाते नहीं है ना अपन, पाया जाता है उसके बाद भी खा रहे हैं, पी रहे हैं. वाई? कितने बैर है मालूम? एक सिगरेट में 4000 केमिकल्स होते हैं, इसमें से 125 ही कैंसर कारक होता है. अरे एक भी हो वही काफी है यार. आपने मैंने किसी ने देखा अपना डीएनए मिथाइलेशन? डीएनए के स्ट्रक्चर में मिथाइलेशन ग्रुप होता है जो सबसे अच्छा होना चाहिए. आप चैलेंज करते ना, वो 40 दिन 40 साल से खा रहा है, सर वो मरा नहीं, मेरा क्या होगा? आपके बाप का जाता है. मैं कई बार रोड में मार भी खा चुका, मैंने लोगों की सिगरेट फेंक दी. हाँ, लिटरली दे अब्यूज्ड. बहुत गंदा गाली बक. लेकिन उनके गाली बकने से क्या मेरी डिग्री, मेरी डिग्निटी, मेरा पर्सनल एस्पेक्ट या मेरा अवेयरनेस छूट जाएगा? नहीं. वो कुछ पल के लिए रहता है. उम्र भर रात को सोते हुए याद आता होगा कि मैंने डॉक्टर के साथ क्या. प्लीज इन चीजों का उपयोग ना करें. आप लोग जो बोलते हो कि 40 दिन 40 साल से नहीं हुआ, उसका मिथाइलेशन इतना स्ट्रांग होगा, उसको नहीं हो रहा होगा फर्क. आपको मिथाइलेशन बहुत वीक है, हो जाता है. मेरे पीएचडी थीसिस में एक केस है, मैं इस प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रोफेसर से परमिशन लो. उसकी ग्रैंड डॉटर वे बैक 98-97 में डेथ भी हो गया. 6 महीने की बच्ची. मामा गोदी में रखता था, बहन जाती थी सेफिया कॉलेज में पढ़ने. मामा को मानिकचंद खाने की आदत. उस छोटी सी बच्ची को 2 महीने से मुंह में रख रख के हैबिट चुप हो जाती थी. दे वेंट फ्रॉम प्रोफेसर शाहपुरा से आते थे. दे वेंट फॉर वन मैरिज, मुस्लिम मैरिज. भाई को दे दिया बहन ने, मामा के पास रहो. वो चले गए अपनी फीमेल का वहां पर पार्टी. जब आई 1.5-2 घंटे के बाद तो बच्चे को फीवर लगा. फिर उसके मुंह में रात को एक हल्का सा फोड़ा दिखा ऊपर. 1 हफ्ते के बाद फोड़ा बढ़ के बाहर आ गया. वो फोड़ा नहीं था, वो कैंसर था. मतलब 3-4 महीने के इन्फ्यूजन ऑफ दिस टॉक्सिक कंपाउंड एक बच्चे की जान दे दी. हम कितने बहने पढ़े लिखे लोग हैं ना. प्रोफेसर का घर बहुत मुश्किल है. मैं क्या बताऊंगा, 4000 केमिकल, पता नहीं क्या क्या होता होगा. इसलिए WHO का ही है, पेटोडॉल एटॉल का 1981 का, उनने तब पब्लिश कर दिया था 60% खाने से कैंसर होता है. मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप मेरे बच्चों झूठ तो बोलना नहीं. आप लोग वर्चुअल हो फिर भी इतने सारे बच्चे, 90% बच्चे आपके तंबाकू खाते हो, बियर पीते होंगे, हुक्का बार जाते होंगे, पता नहीं कहाँ जाते. मेरा सर्वे, मैं अभी मैडम आपके वहाँ का एनएसएस कैंप किया हूँ जी. मैं, एक नहीं 4-5 कैंप किया हूँ डॉक्टर मिश्रा के साथ. हाँ जी, हाँ मैंने जी, खुद देखा है टेस्ट करके बच्चे क्या करते. बिल्कुल. बहुत जरूरी है हमें अपने आप के परिवेश में बहुत सारी चीज डालने की जरूरत है. और आज अच्छा मौका आप सभी ने दिया है, तीनों महाअनुभव लोग ने मुझे जो मौका दिया है, वो उसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा. डॉल पेटो ने बोल दिया था ये कैंसर डाइट से होता है. मैं बोलता कौन तंबाकू खाने वाला, शराब पीने वाला खाना नहीं खाता हो. 30% तंबाकू दे रहा है और बाकी प्रतिशत खाना दे रहा है. एक रोटी को खाने से भी कैंसर होता है. मैं बताऊंगा कैसे, क्यों कैंसर बढ़ गया. जैन धर्म सात्विक खाना, सनातन धर्म का सात्विक खाना, चतुर्वेदी ये वेदी वो वेदी, सब प्याज लहसुन कुछ भी नहीं, तो फिर क्यों कैंसर हो. WHO ने बहुत अच्छा गाइडलाइंस दिया इसके बारे में, मैं आपको बताऊंगा पूरा. देखिए ना, नया 2016 का गाइडलाइंस, इसमें बोला 30% डाइट भी देगा, वो खान पीन भी देगा, और अननोन पॉपुलेशन 19 उसमें डाल देंगे 39% हो जाता है. तो बहुत मुश्किल का काम है. हम क्या समझे क्या नहीं समझे, बट हैंकॉक का पब्लिकेशन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से, पर्याप्त रूप में, बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया कि डाइट से कैंसर क्यों होता है. मेरे बच्चों, ये समझ लो कि पता नहीं ये क्या होने जा रहा है. लाइक इट इज समथिंग वेरी अलार्मिंग.
टाइट जीन्स, मैं इतने स्कूल जाता हूँ, मेरे ख्याल से 2008 से मैं बोल रहा हूँ, लोग हंसते थे मेरे ऊपर। हमने एक सर्वे किया था, मेरा एक ग्रुप था पहले, एमबीबीएस यूएसएमली और प्लैब लंदन और ब्रिटिश एंड यूएस से जाने की तैयारी करते हैं, राधिका माथुर और बहुत सारे लोग आए थे डॉक्टर्स। उनको एक प्रोजेक्ट दिया था सर्वे, एक स्कूल यहाँ का माउंटेड स्कूल में सर्वे किया गया और सर्वे फॉर्म में भेजा गया फीमेल्स के डायरी, बच्चों को, लड़कियों को, मतलब सेकेंड क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चों में दिया गया। सर्वे में बहुत सारा क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था उसमें मीनार की एज, महामारी स्टार्ट होने के महीना स्टार्ट होने का पहला दिन। जब हमने सर्वे समअप किया, समरी किया, कभी कभी बहुत अच्छा काम करो और किसी शैतानों को डाटा दे दो ना, तो डाटा और किसी के नाम से पब्लिश हो जाता है। ये पब्लिश होते हैं बाहर के लोगों के नाम से। हमारे यहीं के एक स्टाफ से जो अब नहीं है, उन्होंने मेरा डाटा हर जगह पब्लिश कर दिया। वो डाटा कहता है 2008 में, वो डाटा कहता है कि 8 साल की उम्र से 10 साल की उम्र की बच्चियां मीनार की एज ग्रुप में है। विडम्बना है, शर्म की बात है और सोचने का विषय। एक जमाने में 12 साल से 16 साल के एज में मेंसेस होता था, आज क्यों हो रहा है? दुनिया भर के गंदे एड्स, व्हाट्सएप में गंदे मैसेजेस, बच्चों को पहले ही मैच्योरेशन में ले आते हैं और ऊपर से टाइट आउटफिट्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये जुलियाना ब्राउन लैंकास्टर का बहुत बड़ा पब्लिकेशन 2015, वेयरिंग टाइट आउटफिट्स अफेक्ट्स स्पर्म काउंट्स। एक ने ओवरिन कैंसर रिपोर्ट किया है, यूट्रस कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड टेस्टिकुलर कैंसर भी रिपोर्ट किया। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं मेल फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हूं, दिस इज समथिंग अलार्म। बहुत बड़ा अच्छा पेपर है, वेरी जेन्युइन पेपर, पढ़ने लायक। दूसरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहता है, डैनियल एंड उनके सब ग्रुप का, वो बोलता है कि सोयाबीन प्रोडक्ट से कैंसर होता है। मैंने कहा क्यों होता भाई, हमारे तो एमपी में सबसे ज्यादा सोयाबीन ही खाते हैं। और एक मिनट, हेलो, यस, मैं हाँ भूपेन, में बाद में बात करूंगी सेमिनार को, है ना। तो बड़ा मुश्किल का काम। जोसेफ मैकोलो ने, डैनियल ने बहुत अच्छे स्क्रिप्ट लिखे हैं, बहुत अच्छा पब्लिकेशन, लेटेस्ट पब्लिकेशन है। इनने शो किया है कि सोयाबीन में क्या होता है, दीस आइसोफ्लेविन्स एंड फाइटोएंडोक्राइन्स क्या करता है। मैं बोल बोल के परेशान था, गांव में जाके परेशान था, तो मुझे कई लोग ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं साउथ इंडियन हूँ, वैसे भोपाली हूँ कई साल से, 50 साल से, लेकिन दक्षिण भारतीय फिर भी कहलाता हूँ। नारियल खाने वाले को क्या मालूम सोयाबीन क्या होता है, नहीं मालूम सर मुझे। लेकिन अभी रिपोर्ट आ गया कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवरिन कैंसर, यूट्रस कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गैस्ट्रिक ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर इज बीइंग कॉज्ड बाय दिस। बहुत कम रिपोर्ट है ब्लड एंड ब्रेन में, लेकिन गैस्ट्रिक ट्यूमर्स में, ओवरियन गायनेकोमेस्टिया में, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज्यादा रिपोर्ट है। ये ईस्ट्रोजन को बहुत ज्यादा कर देगा, बिल्कुल कम कर देता है, रिपोर्ट है कहता। एक रिपोर्ट कहता है डैनियल का कि ये टेस्टोस्टेरोन को डिस्टर्ब कर देता है, मेल हार्मोन को। तो मैं क्या करूं, सोयाबीन बड़ी मत खाऊं, बोलूं सोयाबीन का तेल नहीं खाओ, बोलता हूं फिर भी सुनते नहीं है। कई हॉस्टल्स में, यकीन मानिए, कई हॉस्टल में, अच्छे बड़े बड़े हॉस्टल्स में सोयाबीन का प्रोडक्ट, सोयाबीन का तेल बंद कर दिया। एक एनएसएस कैंप गया था मैं, बीएसएस का, वहां सोयाबीन बड़ी बनी थी और सोयाबीन का तेल से बना हुआ, यकीन मानिए, आई एम सैल्यूटिंग दैट ग्रुप। पूरा तेल फेंक दिया उन्होंने और पूरा सब्जी को उन्होंने पिट आउट कर दिया, गड्ढा कर दिया। वो बच्चे उस दिन क्या खाए होंगे मालूम नहीं, लेकिन समझे चीजों को। फ्यू गर्ल्स आर क्राइंग कि सर हम सोयाबीन बड़ी के अलावा कुछ नहीं खाते हैं और वी हैड फाइब्रोइड, कम एज के बच्चे। तो किसको अवेयर करो, हेल्थ के लिए क्या अवेयर करो, ये समझना पड़ेगा कि आपको लेना क्या है, नहीं लेना। ये सब प्रोस्टेट कैंसर रिपोर्ट क्या है, न्यूबॉर्न रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नॉर्मलिटी,
क्या करना चाहिए? एक मिथ, हेल्थ के लिए मिथ, बहुत गंदा मिथ, कि जो नॉनवेज खाता है उसी को कैंसर होता है। एक कंपाउंड होता है माइकोटॉक्सिन या नाइट्रोजमाइन, उसके कारण एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसके कारण कोट होता है कि 20 से 40% कैंसर हो जाता है। वेजिटेरियन वालों को कोई कैंसर नहीं होता, तो काय को जैनों को कैंसर हो रहा है? पब्लिश डाटा, दैट शुड बी अ लॉजिक डाटा। हो रहा है ना कैंसर। एक पब्लिकेशन पढ़ा है कि 13.7% जैनिज्म पॉपुलेशन को कैंसर होता है पूरे वर्ल्ड में। क्यों होता है मालूम? बताऊंगा क्यों। एक पब्लिकेशन बहुत अच्छा है जो बोलता है कि 22% फल फ्रूट खाओ, कैंसर को रोक सकते हैं। 46 प्रतिशत आप वो करेंगे सब्जियों का सेवन, तो आप कैंसर को रोक सकते हैं। जी, मैं डंके की चोट में बोलता है, हाँ, फल फ्रूट से खाद्य पदार्थ से कैंसर को रोका जा सकता है। लेकिन डब्ल्यूएचओ एक और, पेट्रोडॉल ने क्या बोल दिया, डॉल एंड पेट्रोडॉल ने, कि खाने पीने से 30% कैंसर होता है। वो क्यों होता है मैं बताऊंगा, लेकिन करना चाहिए। लेकिन कैरेट, गाजर अकेला 60% कंट्रोल कर सकता है कैंसर। एवोकाडो एक बहुत अच्छा फल फ्रूट है, जिसको लीजिए, 6 महीने तक कैंसर नहीं होता है, रिपोर्टेड है, और वाकई में नॉरिश करता है। मेरे हॉस्पिटल के कैंसर पेशेंट, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी रिसीव करने वाले पेशेंट मेरे को आके बोल के चले जाते। हाँ, दूसरी बात यह है कि मैं उनको बोलता नहीं हूँ कि ऊपर जाके कंसल्टेंट्स को सबको बताए कि डॉक्टर गणेश ने डाइट दिया था, उससे काफी फायदा हुआ। आई डोंट वांट टू मार्क। लेकिन एवोकाडो जैसा फल फ्रूट बहुत लाजमी है, बहुत अच्छा है। इसका फल फ्रूट का सेवन करना चाहिए। एवोकाडो क्या होता है समझना है तो मेरे कैंपस में आके इसका फल को देख। स्तन कैंसर रोकना है, जिम जाते हो आप लोग, वे प्रोटीन खाते हो, वे प्रोटीन में वेजिटेरियन कुछ नहीं है, वो सोयाबीन का आखिरी जो नाले में फेंकने वाला पानी, सोयाबीन बड़ी बनने के बाद ऑक्साइड ट्रीट किया हुआ, ये मैं नहीं बोल रहा, ये यहाँ पर कृति ऑयल, सूर्य ऑयल, एग्रो ऑयल्स था, उसका चीफ केमिस्ट मेरे यहाँ पर आके बोल के चला गया, फिगर एग्रो ऑयल्स बंद हो गया। उसमें बोला सर नाइट्रिक ऑक्साइड से हम वॉश करते हैं सोयाबीन बड़ी बनने के पहले, और वे प्रोटीन में वही रहता। इसमें पिग का इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर का एक्सट्रैक्ट भी ऐड होता है। अभी डिक्लेयर हो ना पोटैटो रेफर्स में, चिप्स में क्या क्या डाला रहता है, चर्बी, सुअर की चर्बी ऐड होती है, लिखा नहीं रहता। तो इसलिए जो जो जाता है जिम, वो सब जिम छोड़ के अपने सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, नॉर्मल वॉक करे, और इंडोल जिसमें होता है, जैसे कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ब्रोकली है, इन सब का सेवन करें। रात को सोते वक्त आप लोग अवेयर हो जाए। अच्छा हेल्थ चाहिए तो, हेल्थ डे है, अच्छा हेल्थ चाहिए, सब धक्कम कीजिए। मेरे मेरे चाचा का थोड़ा जाता है यार, आप लोग मत सुनिए मेरी बात। लेकिन रात को सोते वक्त अदरक का रस 5 बूंद और 5 बूंद शहद मिला करके चाट के सो जाइए। फिर देखिए दूसरे दिन पेशाब फूड एंड ड्रग को दे दीजिए, वो आपको बता देगा एसपीएलसी करके कि कितना मेटल ऑक्साइड, फ्री रेडिकल्स उसमें प्रेजेंट है। फिर खुश हो जाना कि मद्रासी ने सही बोला। ठीक है, आगे बढ़े। जिन चाचा का एज 40 साल के ऊपर है, उनको पोटैटो खाना चाहिए, टमाटो खाना चाहिए। देशी टमाटर बीज हटा के खाएंगे तो गठिया का प्रॉब्लम नहीं होगा, पथरी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी अच्छे से पी लीजिए। इसमें लाइकोपिन होता है जो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने नहीं देता है। इसको मैश करके पूरे चेहरे में लगा देंगे, बालों को छोड़ के, वो यूवी लाइट प्रोटेक्शन का काम करता है। 15 मिनट लगाइए, धो लीजिए, चले जाइए, किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्तन कैंसर को रोकना है, ओरी कैंसर को रोकना है, गैनोकोमेशिया को रोकना है, ग्रेप्स खाइए, एलर्जिक एसिड होता है, सीजन है, खाइए, अच्छे से खाइए। संतरे का मजाक करते हो, आंखों में डालते हो छिलके का, मत करिए, वेस्टेज। उसको अपने आंखों में डालिए, ग्लोकोमा नहीं होगा, रेटिनल कैंसर नहीं होगा, कॉर्नियल रैप्चरिंग नहीं होगा। उसको सूंघने से टर्पिन ट्रिप्टोजैंथिन होता है, लंग्स में जाएगा। मेरे कैंसर पेशेंट बोलते हैं कि सर जो स्टेटस था हमारा, ट्रीटमेंट हमने पहले करा था, वो रिवाइव हो गया, मतलब फिर से रिलैप्स हो गया केस, बट व्हाट यू टोल्ड वी गॉट वेरी। दिल्ली का एम्स का एक पेशेंट ये थेरेपी कई लोगों को दिया, और वहां का फीडबैक मेरे पास आया कि सर बहुत आराम देता है, गुस्सा नहीं आता, इरिटेशन नहीं आता, मेमोरी लॉस नहीं होता। ये मैं नहीं कहता, मेरे टॉक के बाद धानी साहब यहाँ के देर देन डायरेक्टर थे प्रशासनिक अकादमी के, वो खुद बोलते हैं डॉक्टर साहब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। गुस्सा आता है, सुन लो, गुस्सा नहीं आता, नींद आती है अच्छी।
लंग्स रिफ्रेश फील होता है। प्लीज डू इट, डोंट वेस्ट। हेल्थ आपके पास ही है, देखिए उस कचरे कूड़े में ही पड़ा होगा, डस्टबिन फेंक देते हैं, नहीं फेंकिए, धोइए संतरे को अपना हाथ, नहीं तो क्या होगा, बिना धोए कर लिया, आंखों में फंगस चला गया उसका, तो बोलेंगे मद्रासी टकला आ गया था प्रबल रॉय के कारण, एंड अल्टीमेटली इसने मुझे आंखों में रैशेस किया। प्लीज गेट अवेयर, हेल्थ हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन ऑफ योर हैंड, हाइजीन ऑफ योर द पील, अच्छे से पोंछ लो, धो लो, फिर उसका उपयोग करो, ठीक है। ये सब करना है आपको, इम्यूनिटी बढ़ानी, तो सब लिस्ट आउट है, आपको पर्टिकुलर यूज करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने से पहले इनका सेवन भी कर लें, जो दवाइयां खाते हैं इनका सेवन कर लें, आपको फायदा मिलेगा। मेरी सीओ मैडम है, बहुत तारीफ करती हैं वो बेचारी, इनडायरेक्टली भी मैंने लोगों से सुना है कि वो शी अप्रिशिएट योर डाइट, और उनको कभी भी कुछ होता है तो बोलते गणेश क्या करना है, बिकॉज इट गिव्स रिजल्ट। मैंने बोला मेडिसिन मत खाओ, मेडिसिन खाना है, लेकिन साथ में ये सब भी लेना है। मेडिसिन का पीछा अपन को उम्र भर नहीं छोड़ना, डॉक्टर का पीछा भी नहीं छोड़ना, लेकिन वी हैव टू मिनिमाइज द विजिट टू द डॉक्टर। मिनिमम, मेरे ख्याल से, यकीन मानो, मेरे स्कॉलर्स को बोलता हूँ कि इनफर्टिलिटी काउंसलिंग बहुत आते हैं, जिस दिन कम ओपीडी होता है डॉक्टर का, मेरे ख्याल से वो डॉक्टर्स बहुत लकी होगा कि मेरा पेशेंट नहीं है, सेफ है, हेल्दी है। लेकिन क्या करें, घर चलाना, डिग्री सबने लिया है, हमने लिया है, संस्कृत वाले ने पंडित बन के लिया है मंदिर में, सबको कमाना है। मैं नहीं बोला कि पेशेंट नहीं आए, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरा अंतरात्मा बोलता है जिस दिन कम ओपीडी होगा, मेरे लिए वो सेलिब्रेशन का दिन होना चाहिए। गॉट इट? तो इसलिए इनको वो करें। माइकोटॉक्सिस, डब्ल्यूएचओ क्यों बोलता है रोटी खाने से, दाल खाने से कैंसर होता है? होता है भाई, जितने बार दोबारा गर्म करोगे खाने को, उतने बार आपको सब लीच आउट हो जाता है, जो वाटर सॉल्युबल है, नाइट्रोसोमैन कंपाउंड। जितने बार नॉनवेज को गर्म करोगे, माइकोटॉक्सिन लीच आउट हो जाएगा, ऑयल सॉल्युबल। ये दोनों कैंसर कारक है। कैंसर कारक क्या, बहुत सारी बीमारी लाता है, आप देख लीजिए, एफ्लाटॉक्सिन है, एफ्लाटॉक्सिन क्रिएट्स हेल ऑफ प्रॉब्लम इन द बॉडी सिस्टम। कौन सा तेल यूज करें आप? सोयाबीन का तेल छोड़ के मिट्टी का तेल यूज बंद करके बाकी जो भी तेल यूज करना करिए। लेकिन 3 टाइप के तेल आते हैं ऑलिव में, पोमोस, एक्स्ट्रा वर्जिन एंड एक्स्ट्रा लाइट। एक्स्ट्रा लाइट से ही खाना बनता है, पोमोस से मसाज होता है, जो एडिबल लिखा है गलत, और एक्स्ट्रा वर्जिन को कच्चा खाते हैं। बाकी सोयाबीन है, सनफ्लावर है, कनोला है, कोकोनट है, सब ले सकते। नारियल का मद्रासी मत मत दिए, मतलब हम लोग सबसे बेकार इंसान है पूरे भारतवर्ष में, दक्षिण भारतीय सबसे इडियट है, नारियल का तेल पीते हैं हम, उसके बारे में मत सोचिए। लेकिन कुछ चीज फॉलो कर लीजिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। 4 बूंद सोने के पहले टंग के नीचे, खाने वाला, लगाने वाला नहीं, पैराशूट नहीं, इडिबल खाने वाला नारियल का तेल जुबान के नीचे 4 बूंद रख लें, आप देखिए कितना सार्थक हो जाता है। आप 7 दिन करके देखो, एक दिन पहले पूरा टेस्ट करा लो, जो भी ट्राइग्लिसराइड, ये फलाना ढिमकाना जो करना है, और 7 दिन के बाद 8वें दिन भी कराइए, यू कैन फाइंड द डिफरेंस। फिर मारना मुझे, हो सकता है आपकी पिटाई से मेरे बालों में, सर में बाल उगना चालू हो जाए, लेकिन फॉलो इट व्हाट आई से, ठीक है। कंट्रासेप्शन में रितु वर्मा करके नेशनल अवार्डी है, यंग साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट, हमने माला डी एंड आईपीएल में काम किया। यकीन माने, सब मर्दों को बोल रहा, कान के सुन लो अच्छे से, डोंट फोर्स योर फीमेल टू हैव अ कंट्रासेप्शन, टिल इट गायनेकोलॉजिस्ट ऑफर इट। प्रेगनेंसी का कुछ इशू है तब गायनेकोलॉजिस्ट बोलती है कि आपको लेना है, अदरवाइज यू आर नो वन टू फोर्स योर फीमेल। टेक आईपीएल, ओरल कंट्रासेप्शन और एनी कंट्रासेप्शन, जो कंट्रासेप्शन यूज करना आपको यूज करना, मर्दों को, फीमेल को नहीं। रिपोर्ट है बहुत सारे, सर्वाइकल कैंसर, ओवरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हमने एनिमल में दिया था, एनिमल ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, मेंसेस का नहीं होना, हमने रिपोर्ट किया, उसी में यंग साइंटिस्ट में था। हंटर एटाल का बहुत अच्छा पब्लिकेशन, एलिजाबेथ एटाल का बहुत अच्छा पब्लिकेशन है कि कंट्रासेप्शन इज हैजार्डियस टू फीमेल हेल्थ, ओरल कंट्रासेप्शन प्लीज शुड नॉट बी टेकन। फास्ट फूड बहुत अच्छे से जाइए, टी शर्ट पहन के, हाफ कपड़े, आधे कपड़े पहन के पहुंच जाइए फास्ट फूड, डीवी मॉल, जहां घूमना घूमो, मैं थोड़ा ना बॉदर करता हूँ, बॉदर करेगा जिस दिन कैंसर हो जाएगा। स्टॉप दिस ऑल नॉनसेंस, फास्ट फूड सब बंद कीजिए आप लोग। एक हेल्दी लाइफ चाहिए, बिना बीमारी का लाइफ चाहिए, तो प्लीज स्टॉप दिस ऑल, प्लीज। आपको कुछ नहीं मिलने वाला,
देखिए कितने चुपे चुपे बच्चे लग रहे हैं, गोलू गोलू वाले लोलू गोलू। ऐसे गलत है भाई, ऐसे बच्चों से खुश मत होइए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है। ऐसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन बच्चों से देख के खुश मत होइए। इतना वेट का निकला, वो मरील सा निकलता है ना, वो ज्यादा अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। ज्यादा फैट इन्फ्यूज मत कीजिए, प्रेगनेंसी में आलतू फालतू मत खाइए, अदरवाइज द आउटकम विल बी दिस। ठीक है, बीमारी बहुत सारी होती है, मैंने बताया जगह जिस्ट है। दिस इज ऑल इनफर्टिलिटी इशू कम्स। एंड हमारा तो डॉक्टर गिरीश हैड गॉट 6 नेशनल अवार्ड्स। अभी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में आईसीएमआर का साइंटिस्ट है इनफर्टिलिटी का। ही इज एजुकेटिंग एवरीवन। से नो टू फास्ट फूड। अच्छी हेल्थी लाइफ लेना है तो से नो टू फास्ट फूड। ओके। गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा परेशान हो, ये लगाओ। हर टीचर को बोल रहा हूँ, प्रबल सर, भावना मैडम, नीतू मैडम, आप सब टीचर को बोल रहा हूँ, पर्स में जी ऑरेंज रख के घूमिए। यदि जी गुस्सा आता है, बिल्कुल। बच्चों की पिटाई करने का मन करता है, या आदमी के ऊपर, बच्चों के ऊपर मत करिए। प्रोफेसर सीनियर जूनियर को परेशान करते हैं, प्रमोशन लिस्ट में नाम नहीं आता। सबको बोल रहा हूँ, अपना गुस्सा अलग करके ऑरेंज का छिलके को सूंघ लो, या ये सब सूंघ लो, उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओ, उसके बाद सीआर लिखो, उसके बाद सब कुछ करो। डोंट कीप योर एगोनी इनसाइड, रिमूव विद दिस ऑल हर्ब्स। फाइन। ये अंग्रेज और आ गए डब्ल्यूएचओ, बोलते हैं कि हम इंडियंस को दिन में एक सब्जी से ज्यादा सब्जी खाना चाहिए। कितने खाना चाहिए? 5 से 9 फल फ्रूट और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। क्यों करेंगे भाई? मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं मद्रासी वाकई में सबसे लोअर सैलरीड हो गया समझो। मेरे सामने डॉक्टर अलीबा बैठी, शी इज वेरी रिच। वो तो 4-5 सब्जी खाती, बंगाली लोग भी बहुत खाते हैं। हम लोग मद्रासी लोग, मलयाली लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल ओणम विशु में ही खाते हैं 20-25 सब्जी। उसके बाद कान पकड़े थे, खर्चा बहुत। लेकिन हम इन अंग्रेजों को बता देते हैं डब्ल्यूएचओ कि सुधर जाओ, ये डाइट का चार्ट रिमूव कर दो अपने टेबल से, पेटो एंड डोलेटॉल। दिस इज नथिंग डूइंग विद इंडियन सिनेरियो। हमारा गरीब कढ़ैया में खाना बनाता है, कढ़ैया हुआ मटल, उसमें तेल डालेगा सरसों का एक, फिर राई डालेगा, जीरा डालेगा, हल्दी पाउडर डालेगा, प्याज डालेगा, अदरक डालेगा, लहसुन डालेगा, टमाटर डालेगा, आलू डालेगा, धनिया पत्ता डालेगा, कड़ी पत्ता डालेगा, पुदीना पत्ता डालेगा, हरी मिर्ची डालेगा, लाल मिर्ची डालेगा, धनिया पाउडर डाल देगा। यही हो गए 20-15 हो गए। ये 9 और 5 और ये धमकी मत दो भैया हमें। हम गरीब लोग 10 से क्या 20 से ज्यादा सब्जियां खाते हैं एक बार। अपने में आ जाए, यदि आलू की सब्जी बनाना, मटर डाल देंगे और गाजर डाल देंगे तो 60% तो वो रोक रहा है। मतलब 10 सब्जी के बाद गाजर हो गया। आगे में दिखाया था ना डब्ल्यूएचओ का ये स्लोगन कि 60% कैंसर को रोकता है गाजर। तो इसलिए हेल्थ अवेयरनेस के लिए गाजर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर लाइफ। अब दूसरा आ गया कम सास, क्या करेंगे इसका? कुछ नहीं करेंगे, इतना पढ़ लिया, बाप रे, पका दिया हम। इतने वेबिनार हो गए, तुम लोग सोचो ये फिर आ गया मद्रासी, फिर बोलेगा मैं कुछ नहीं बोलने वाला, तो कुछ दिखाने वाला हूं। ये सिम्टम तो लास्ट ईयर के थे चाचा, फीवर कफ, ये दुनिया भर का फलाना ढिमकाना, ये सब इतनी सारी चीजें। अभी ये सब नहीं हो रहा है। मैं तो रेगुलर कांटेक्ट में हूं बहुत सारे सेंटर के, मैं एथिक्स बोर्ड में हूँ काफी सेंटर के। तो बोलते हैं सर, पेशेंट आता है दूसरे दिन वेंटिलेटर में चला जाता है, तीसरे सेकंड, कुछ सेकंड के बाद वेंटिलेटर में चले जाता है, इतना लंग कोलैप्स करके आता है। डिसीज एकदम से लंग्स में जा रहा है। ये आपको खुजली लाएगा, शरीर में खुजली, दस्त आएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगा, हेडेक होगा, आपको प्रॉक्सिमल पेन्स होंगे, जॉइंट्स पेन्स होंगे। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस कोविड-19 फेज 2 वेव का। कितना अच्छा लगता है ना सुन के। इस साल कोई सिम्टम नहीं, मालूम चलेगा और लंग्स में वो जाके बैठ गया। चाचा का घर है, हाँ, कोविड के चाचा का घर है कि हमारे लंग्स में जाके बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? क्योंकि मास्क नहीं लगाना आप लोग को। अभी भी ऐसे घूम रहे होगे नाक के नीचे रख के। मैं सोनागिरी से यहाँ तक आता हूँ 17 किलोमीटर, रुक रोक के गाली बक के आता हूँ, चिल्ला के आता हूँ। वो माँ बहन करता गाली बकता, मैं डरता नहीं, लेकिन चिल्लाता जरूर।
सुबह से गेट से गार्ड से बोल सबको डांटते हुए आता हूँ, माँ चढ़ाओ, नाक में चढ़ो, नाक में चढ़ो, पता नहीं क्या शौक है, मुंह ढक के, अरे मुंह से क्या, नाक से घुसेगा। वो 4 दिन का मौका भी नहीं दे रहा। हो सकता है मैं बोल रहा हूँ मुझे हो जाए, नोबडी नोस। प्लीज गेट अवेयर, गेट अवेयर। ये सब अच्छे फल फ्रूट खाओ, बहुत अच्छा चीज है ना। डब्ल्यूएचओ ने भी बोल दिया ये खाओ। ये प्लीज खरीद के रख लो, जिनके पास गांव में है ऑनलाइन मंगा लो। पंकज कस्तूरी ब्रीथ इजी, इसको खाना चालू कर दो, इससे अच्छा आपको चीज नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया ये ये इंग्रेडिएंट है पंकज कस्तूरी। केरला शॉप में मिलता है, जहां जहां केरला शॉप में वहां से खरीदो। तीन आयुर्वेदिक शॉप में 700-400 रुपए का फेक लेबल लगा के दे रहे हैं। प्लीज आप केरला शॉप जाए, केरला शॉप से ही खरीदें, अदरवाइज डोंट विजिट टू एनी शॉप। छोटे बच्चों को चुटकी भर देते हैं 3 बार, और बड़ों को आधा चम्मच 3 बार मुंह में रखेंगे, घुल जाता है। गुड़ जैसा टेस्ट होता है, खजूर के गुड़ का बना हुआ रहता है, इसलिए प्लीज ले लीजिए, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन से हमारे आयुष ने, आईसीएमआर ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड डीएचआर ने बहुत सारे गाइडलाइंस किए। पीले सब्जियां खाओ, गार्लिक लो, क्यूमिन लो, सब कुछ करने बोला है, करिए, जो भी समझ में आता करिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क लगाना भूलिए मत। ये सब करने के बाद भी चाचा घुस जाता है, क्यों? क्योंकि हम मास्क नहीं लगाते। कीप मास्क ऑन योर फेस। इस कोविड से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, सब तैयार है। हमारे पास मेडिसिन है, हमारे पास डिटॉल है, वॉश, सैनिटाइजर है, हैंड स्क्रब्स है, एवरीथिंग इज देयर। बट किसी ने सोचा था 3 महीने आराम से मस्ती की यार, दिवाली की, पता नहीं क्या क्या किया अपन ने, सब कुछ किया। लेकिन प्लीज अब सब भूल जाइए, मरना लिखना सब कोविड के हाथ में है। वी हैव टू स्टे विद दिस डिसीज फॉर लाइफ लॉन्ग। मास्क पहनना छोड़िए मत, रात को सोते वक्त भी मास्क पहन के सोइए, यदि आप ग्रुप में सोते हो तो। मैं सोता हूँ क्योंकि मेरी माँ मुझे पागल बोलती है, मैं लिटरली मास्क पहन के सोता हूँ। शीतल की पता नहीं कौन सा भूत घुस जाएगा। आई एम वेरी स्केरी अबाउट दिस इज लाइक माय स्कॉलर्स एंड स्टाफ इज लाफिंग ऑन मी कि ये मद्रासी पागल हो गया, लेकिन मैं सोता हूँ, मास्क लगा के सोता हूँ। बस चले तो नहाते हुए भी मास्क लगा। हमारे इतने fascinating doctors are ready, the scientists are ready with vaccine, yes indeed। and दूसरा जो ऑक्सफोर्ड के मदद से इन साइंटिस्ट ने डेवलप किया, दैट इज कोविशील्ड। दोनों वैक्सीन के रेगुलेशन चालू हो गए, पीपल आर डूइंग इट। इन कमीनों को तो हम भगा देंगे, लेकिन मास्क ना लगाने वालों का क्या? जो वैक्सीन लगा रहा है उसको भी हो रहा है ना, जरूरी नहीं क्या होगा, नोबडी नोस फ्यूचर। इसलिए एरिएडना ने बहुत अच्छे से लिखा है, लिसन टू मी लिटिल फीटस, ए मेरे लाल मेरी सुनो, होमो इनकम्प्लीटस, यू ड्रीम योर ड्रीम प्लेजेंटर, नथिंग ग्रो एनीथिंग एक्सीडेंटल। यही गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है। हमें डर लगता है, रोज रात को भयानक सपना कि साला तुम्हारा जान जात है तो हम क्या करें, लकड़ी नहीं मिल रहा है, स्वीपर नहीं मिल रहा है, ड्रेस नहीं मिल रहा है, जो पीपी किट मिलता है नगर निगम वालों को, वो बॉडी भी मट्टी की तेल में हर जगह। छिंदवाड़ा में मेरी स्टूडेंट बोलती है कि सर इट इज बर्न विथ पेट्रोल। डू फील हैप्पी? मरते तब वक्त तो हमें आत्मा को अच्छे से शुद्ध करके, अच्छे से पवित्र चीजों से करना चाहिए। ये क्या तरीका? ये लाइफ है। यदि हेल्थ को नहीं समझोगे आप लोग, अपने शरीर में जो हड्डियां हैं 206 उसका रेस्पेक्ट नहीं करोगे, मांसपेशियां उसका रेस्पेक्ट नहीं करोगे, जो पवित्र आत्मा जो दिखती नहीं है, विलुप्त हो जाती है शरीर को जाने के बाद एकदम से, उसका रेस्पेक्ट करते नहीं हो, जब भी हमें ये बीमारी से जूझना पड़ेगा। प्रण लीजिए प्रबल सर के टीम के द्वारा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा संदेश पूरे लोगों को पहुंचाइए। प्लीज मास्क पहनिए, नो बर्थडे, नो सेलिब्रेशन, नो गेट टुगेदर, गेस्ट को एंट्री बंद कर दीजिए। प्लीज बी ऑनेस्ट फॉर योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट। हम जब हमारे लिए ऑनेस्ट होंगे तब आगे जाके ऑनेस्टी आएगी। हमारे पास कोविशील्ड है, थैंक यू फॉर दिस। हमारे पूरे डॉक्टर्स ने लगाया, मैंने खुद लगाया, साइड इफेक्ट होता है। खाना खा के जाना, क्या अवेयर करना है, इसलिए खाना फुल प्लेट खाना खाए, पेट, पानी हाइड्रेट अच्छे से करें, फिर वैक्सीन लगाए, फिर पानी पिए। प्लीज खाली पेट
और बिना पानी के वैक्सीन मत। हर लोग लगा सकते हैं। प्लीज गो एंड टॉक टू योर कंसल्टेंट टीम, नगर निगम, एनीवेयर, गो एंड फाइंड द वैक्सीन ओवर देयर एंड इट इज गोइंग टू। पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। मुस्लिम पॉपुलेशन में बहुत सारे कैंसर नहीं होते जो बाकी पॉपुलेशन में। नेल कटिंग करो, मूछों को लिप्स के ऊपर तक रखो, प्यूबिक हेयर, आर्मपिट हेयर को रिमूव करो, टाइमली हाइजीन करो, कपड़े धो, इनर गारमेंट्स को अच्छे से धो, डिटॉलिंग करो, बहुत अच्छे से हाइजीन रहो प्लीज। रिंग वॉर्म, अपने जो राउंड राउंड धब्बे आ जाते हैं खुजली वाले, उनको इजिली मत समझो, वो बहुत सारी बीमारी ले जाता है। प्लीज हाइजीन, ये सब पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। माउथ वॉश बहुत जरूरी है। कुल्ला करिए अच्छे से। ब्रश करने के पहले, खाना नाश्ता करने के पहले अपन ब्रश करके देते नहीं, हमें कुल्ला कीजिए, गार्गल कीजिए। गार्गल करने के बाद आप, ये माउथ वॉश है, आप कोई से भी माउथ वॉश ले लीजिए, गार्गल कीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से। फिर 15 मिनट के बाद नाश्ता कीजिए। नाश्ता करने के बाद ब्रश कीजिए, फिर देखिए कितना कमाल। ठीक है, रात को भी ऐसे करके सोइए। पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लीज, हमें छींकना सोच समझ के करना चाहिए, पब्लिकली छींकना नहीं चाहिए हमें। स्नीजिंग, कफिंग बहुत बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए इन चीजों के लिए। टिश्यू पेपर रख लें, या नहीं है कुछ तो इमीडिएटली आता है, रोक नहीं सकते तो अपने बाजू को ऐसे करके कर लें। हैंड स्क्रब अच्छे, पूरा 7 स्टेप जो हैंड स्क्रब का है अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है, सबको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, मास्क को बार बार मत छूइए। यकीन मानिए, कल मेरा स्टाफ चले गए हैं, ये वही मास्क है, फिर मैंने इसको पूरा सैनिटाइज किया, वो हाथ से टच कर रहे। तो बहुत मुश्किल का काम है। सोशल डिस्टेंसिंग जहां यूज करते हो आपको होने, मेरे यहाँ घर में, मेरे घर तेज पत्ता है और कपूर, इस दोनों को बॉईल करके मैंने सैनिटाइजर बनाया, बहुत अच्छा सैनिटाइजर है। उसको मैं रात को जाते वक्त सब जगह कर देता हूँ, सुबह निकलते हुए सब जगह करके आता हूँ। माँ को बोल के आता हूँ, मम्मी जहां जहां हाथ छुओगी सब जगह करो। हमें नहीं मानो वो शैतान बैठा है। प्लीज डोंट चैलेंज। ठीक है, इफ आई कैन यू कैन, प्लीज। यदि मैं करता हूँ आप लोग भी करिए, प्लीज प्लीज करिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मेरे चेयरमैन सर बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, सुन रहे होंगे मुझे, सुनते उनकी ब्लेसिंग मिलती है। मेरी मम्मी जी जो चेयरमैन मैडम है, वो भी लाइक इट्स फिनो कॉपी ऑफ माय चेयरमैन, वेरी हम्बल, वेरी डायनेमिक, वेरी थॉटफुल। एंड वो आज नहीं रहे मेरे चेयरमैन साहब, श्री मदन मोहन जोशी साहब, जिनने ये पूरे इंडिया में द बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल डेवलप किया। भोपाल के एक पहाड़ी में हमारा एक सेटअप है। सबको आगे चलाया हमारी सीईओ मैडम ने, दिव्या पारेशर मैडम ने, पूरी टीम ने। हमारे डायरेक्टर श्री डॉक्टर केवी पंड्या साहब, डॉक्टर प्रदीप कोलेकर साहब, श्री राकेश जोशी जी, सक्सेना सर, सभी कंसल्टेंट हेड, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, बहुत अच्छी अच्छी टीम है। 3 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर प्रतीक एंड डॉक्टर भार्गव, और ऊपर डॉक्टर रितु है, डॉक्टर नलिनी है, डॉक्टर शरण है, डॉक्टर विधि है, डॉक्टर राकेश महावर है, डॉक्टर योगेश जैन है। ऐसे बिग टीम, वी हैव बिग टीम। सर्जरी में डॉक्टर नीलू, डॉक्टर रेणु, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर महेंद्र पाल, then we have a good radiologist, we have a Dr. CP, Dr. Saurabh, Dr. Abhishek, Dr. Nalini, big team we have। तो मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जगह दिया इस हॉस्पिटल में। 24-25 साल हो गए मुझे यहाँ पर। मेरे व्याख्यान आज को मिला के हो जाएंगे मोर देन 2300 के ऊपर हो गए होंगे अब। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे जो मिशन है, जो टीम है, उसके साथ जुड़िए, मेरे साथ चलिए। आपको लगता है कि व्याख्यान देना है रात को 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, कहीं पर भी, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। वर्चुअल मीटिंग करेंगे, लेकिन हमारे चेयरमैन सर के स्लोगन को वो नजरअंदाज नहीं करना है। सी से कैंसर, सी से कोविड, फाइन। कैंसर एंड कोविड से डरिए नहीं, हमारे साथ मिलकर लड़िए। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करें, हैंड हाइजीन, हैंड सैनिटाइजिंग, प्लेस सैनिटाइजिंग प्रॉपरली करें, एंड रेस्पेक्ट योर सोल एंड बॉडी। थैंक यू फॉर पेशेंस एवरीवन। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। मेरा थैंकफुल है हृदय से JNC फैमिली की तरफ से, प्रबल रॉय सर का, और जितने भी टीम मेंबर है, डॉक्टर भावना, डॉक्टर नीतू, यू आर वेरी हम्बल्ड, वेरी वेरी काइंड एंड प्लीज्ड, एंड सब पार्टिसिपेंट्स, मेरे 47 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, उन सबका हृदय से धन्यवाद। कुछ क्वायरीज हैं, अब क्वायरीज क्या हैं मुझे देखना पड़ेगा।
कि how to know that unwanted cell grow in a body. इसका yes. पूनम answer. Can you hear me, पूनम? माइक ऑन करो. पूनम, पूनम आप मुझे सुन रही हैं? अनम्यूट कीजिए उसे, पूनम को. पूनम, Yes, यस सर, मैसेज किया है उसने। हाँ, मैसेज किया है। पूनम आप मेरी बात सुनो. कैसे मालूम चलेगा ये कैंसर है नहीं है? मैंने आपको साइंस में बताया था, शरीर में कोई भी ऐसी विसंगतियां विकृतियां पैदा हो गई हो जो प्रारूप में नहीं थी, हमारे शरीर में नहीं थी, सब छाला, गठान, खुजली, ऐसा जो आपको दर्द नहीं देता, वो सब कैंसरस होता है. 99% कैंसर हो जाता है, बाकी ईश्वर की मर्जी और पैथोलॉजिस्ट की मर्जी. ठीक है, तो शरीर में ऐसा कोई भी ग्रोथ को मत रखें जो दर्द नहीं देता. जो दर्द नहीं देता, कड़क होता है, एक ही जगह रहता है, स्थगित रहता है, खुरदुरापन रहता है, कैलकेरियस रहता है, वो कैंसर की तरफ रुझान जाता है. तो इसलिए प्लीज ऐसे चीजों को शरीर में ना रख के आप डॉक्टर के पास जाके खुद को. डॉक्टर भी हम बोल रहे हैं मेरा फर्टिलिटी इतना इजी नहीं है. पेट का दर्द है, सिटी स्कैन. मेरी मम्मी का केस बताता हूँ, पेट का दर्द है, सिटी स्कैन ब्रेन का हो रहा है. ठीक है, अभी एक डॉक्टर ने मेरे नेबर को 7 लोग कोविड पॉजिटिव, एक का एक्सरे फिल्म भेजा, लंग्स का आधा सेक्टर था, बाकी पूरा हिप फीमर बोन तक एक्सरे किया हुआ. मुझे शर्म आ गया, कैसे रेडियोलॉजिस्ट है. सबको लर्निंग प्रोसेस है. आप आंख बंद करके डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर अपने हिसाब से. डॉक्टर के सामने आप गूगल सर्च करके जाओगे, फिर डॉक्टर अपना करेगा. तो प्लीज आप मरीज बन के जाए, डॉक्टर को डॉक्टर के तरीके से रहना. Devrat, what is that? We being talking how aware cause throughout the webinar. Please tell us how bring a change in cancer prevention. Oh, good question. हम दुनिया भर की बातें कर रहे हैं कि अवेयरनेस ऐसा वैसा है ना, अवेयरनेस के बारे में क्या हो सकता है, लेकिन ने बोला प्लीज टेल अस हाउ अवेयरनेस ब्रिंग्स अ चेंज इन कैंसर प्रिवेंशन, health betterment. Yes. Devrat, can you hear me? Devrat? देवव्रत, प्लीज व्हाट्सएप योर मैसेज. Yeah, he did मैसेज ड्रॉप कर message. दीजिए. राइट, इसने मैसेज ड्रॉप किया है मुझे. ओके. बेटा मैंने आपको अभी बताया कि मैंने आपको बताया ना कि अवेयरनेस से क्या क्या हो सकता है. हमें मालूम है कि ये गठान है और गठान को रखे रहेंगे अनअवेयर होके तो कुछ प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम. इतने सारे डॉक्टर और इतने सारे साइंटिस्ट लोग के मुंह दिखा दी ना मैंने. अवेयर है, हमें कुछ एब्नॉर्मल चीज दिख रही है बॉडी में, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को अवगत करें, सर यही पार्ट, इसी पार्ट में इसी का करो, सुई की जांच यहीं करो, एफएनएस बायोप्सी यहीं का करो, सब यहीं का करो, मुझे प्रॉब्लम यहीं पर. ठीक है, कभी कभी मालूम भी नहीं चलता है, इतना गंदा होता है कैंसर कि किस जगह है प्राइमरी वही मालूम नहीं चलता. तो इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है. सेल्फ अवेयरनेस होने से ही हम बहुत सारी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं. कैंसर का डायग्नोसिस मेथड होता है, पहला स्वयं का आंख, आंखों से देख सकते हैं. दूसरा पैथोलॉजिकल, जैसे एफएनएससी से, हिस्टोपैथोलॉजी से, बायोप्सी से, ट्रूकट बायोप्सी से, रेडियोलॉजी में एक्सरे से, सीटी स्कैन से, एमआरआई से, सोनोग्राफी से. ठीक है, एस्ट्रोस्कोपी की स्टडी, न्यूक्लियर एस्ट्रोस्कोपी की स्टडी से, सर्जरी के बाद सर्जन भी बता सकते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं. तो बहुत सारे मेथड होते हैं. माइक्रोस्कोपिक मेथड भी होता है, जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, माइक्रोस्कोप यहाँ रखा हुआ. ठीक है, चलिए और कोई है कुछ? 19 चैट आया है, माय गॉड, बहुत सारे चैट. सर थैंक यू. ईटिंग, सर ईटिंग 50 ग्राम ऑफ सोया चंक्स डेली इज डेंजरस. यस. अमितेश वर्मा, यस इट इज डेंजरस. आपको एक बूंद भी सोया का प्रोडक्ट मत लीजिए. प्रोटीन की कमी है तो बहुत सारे ऑप्शंस है प्रोटीन खाने की. थ्रिप्टन बिस्किट आता है मार्केट में, बरसों से चला आ रहा है. एक बिस्किट सुबह, एक बिस्किट शाम को ले लीजिए. लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए आप, अमितेश माइक ऑन करेंगे? अमितेश, ए बाबू. सर एक्चुअली माइक ओपन नहीं हो पाएगा क्योंकि जो अच्छा, पैनल में है वही बात कर पाएंगे. अच्छा, हाँ जी, ओके, वो फाइन. मैसेज कर सकते हैं जी. ओके फाइन. आपको कुछ भी नहीं लेना है. मेरा नंबर बहुत ईजी है, एक बार समझा रहा हूँ, सुन लीजिए. दांत होता है 32, 32 का आधा करेंगे 1600.
तो 32 16 16 तो याद हो गया, लेकिन स्टार्टिंग का नंबर है 9826 32 16 16 9826 32 16 16। आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, आपको कुछ डाउट है वो भी बात कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। यस, प्रोटीन इज वन ऑफ द आंसर। आपको थ्रिप्टन भी इसका, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज खाइए, नहीं तो एग का एल्ब्यूमिन लीजिए, बॉईल करके एल्ब्यूमिन लीजिए। प्रोटीन के लिए देशी चना है उसको ले लीजिए, ठीक है। यदि कैंसर का ग्रोथ कहीं नहीं है तो सोयाबीन ले लीजिए, सोयाबीन बोल रहा हूँ, दिस राजमा, राजमा भी बहुत अच्छा प्रोटीन है। जैक फ्रूट, कटहल है उसमें ले लीजिए, उसके बीज को ले लीजिए। तो प्रोटीन की मात्रा बहुत जगह से मिल सकती है, लेकिन आपको सोया चंक नहीं लेना है, जहर है वो, ठीक है। और किसका क्वेश्चन है भाई? नारायण सर, मैं ही क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। एक मिनट मैडम, कि बच्चे पहले ज्यादा जरूरी तो है। हर जगह है, हाँ हम जी। मतलब हम जो भी खाते हैं वेजिटेबल्स हैं, हम कहते हैं नहीं वेजिटेबल खाओ, फ्रूट्स खाओ, लेकिन सभी जगह मिलावट है, तो प्योरिटी कहाँ है? हाँ, इसलिए मैंने टेरेस गार्डनिंग किया है, गमलों में धनिया पुदीना जरूरतमंद की सब्जियां लगा लेता हूँ, कि हमें मार्केट से कुछ प्रदूषित मिला है तो बहुत अच्छा चीज हमारे घर से भी मिल सकता है। सब्जियों को मार्केट से लाके आप आधा घंटा डुबा के रखिए, जिसको छिलके के साथ खाते हैं। ओके। जिन जिन सब्जियों को छिलके के साथ खाते हैं उसको आधा घंटा डुबा के रखें पानी, और प्लीज उसको अच्छे से धो के रिंस करके फैन ऑन करके पेपर में डाल के रख दे, थोड़ा ड्राई हो जाएगा, फिर उसको पैक करके फ्रिज में रख दे, फिर रोज बना के खाइए। अंगूर को ऐसे पोछ के मत खाइए, अंगूर सबसे डेंजरस है। अंगूर का लेकिन एलर्जिक एसिड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है लड़कों के लिए लड़कियों के लिए। तो उस अंगूर को एक एक दाने को पानी में डुबा दीजिए, आधा घंटा सोक हो जाएगा, एंटी फंगल रिमूव कीजिए अच्छे से, खंगार के रनिंग वाटर में खंगारिए, अच्छे 2-3 वाटर वॉश करने के बाद फिर उसको पानी सीवर में रख दीजिए, छलनी से पानी ड्रेन हो जाएगा, फैन में उसका पानी चले जाएगा, फिर पैक करके जिपलॉक बैग में थोड़ा जितना खाना रख के रख दीजिए। प्लीज करिए फॉलो, ठीक है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे आंसर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस, इट इज आई ओपनिंग, डेफिनेटली। आप लोग को अच्छा लगा, मुझे बहुत बहुत खुद अच्छा लग रहा है कि मेरा आज व्याख्यान सार्थक हुआ सर के कारण। और कुछ भी हेल्प चाहिए कॉल कीजिए मुझे। एंड थैंक यू ज्योति, थैंक यू पूनम, अनिका, दलजीत, श्वेता, so many students, Prabha Rao, Jyoti, and who else? Jyoti Rawat, Bandana Morole, Anika, और बहुत सारे लोग। I'm thank you Amitesh. Yes, everyone is. I'm thankful to you. Please, जिन लड़कों को अपना फर्टिलिटी इशू है या कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है पर्सनल, तो मेरे को कॉल करके प्लीज ले लें। डॉक्टर मेरे पास राजकुमार भी स्कॉलर है, वो भी उसमें काम कर रहा है, डॉक्टर गिरीश भी काम कर रहे थे, उनका नंबर भी दे दूंगा, उनसे भी बात कर सकते हैं। तो प्लीज ओपनली, क्योंकि ये वक्त नहीं है शर्माने का, ठीक है। तंग कपड़े बिल्कुल पेंसिल टाइट, स्किन टाइट जीन्स पहनते मत पहनिए, उससे एक तो चढ़ाने वाला 2 आदमी चाहिए, पन्नी से चढ़ाता है, उतारने के लिए 4 लोग चाहिए, बहुत मुसीबत है। टाइट कपड़े मत पहनिए प्लीज। हमारा जो परिधान था, जो हमारा संस्कृति था स्टार्टिंग का, लूज कपड़ा पहनने का, वही सबसे अच्छा है। फॉरेनर्स उसी को उपयोग में ला रहे हैं, खादी को। तो आप लोग भी कोशिश करके टाइट ड्रेसेस नहीं पहने। फल फ्रूट को जूस को पीने वक्त मुंह में रखिए थोड़ी देर, गटकिए मत, गटकने से 2 घंटे के बाद शरीर में जाएगा। मुंह में 5 सेकंड 10 सेकंड रखोगे फल फ्रूट को, जूसेस को, तो वो 15 सेकंड नहीं 5 सेकंड के अंदर हार्ट में चले जाएगा। कहाँ 3 घंटे 2 घंटे में शरीर में असर करेगा वो पेट में जाने के बाद, और मल के रास्ते से चले जाएगा। लेकिन ये 90 to 80% यूटिलाइज हो जाएगा यदि मुंह में रखोगे। कुछ चीजें मुंह में रख के फिर गटकिए, इससे फायदा होगा, ठीक है। जिनको कैंसर है, सॉलिड ट्यूमर, उनको राजमा और मसूर नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? और कटहल का बीज भी, क्योंकि इसमें फाइटोहिम है, ग्लूटेनिन होता है, माइटोजन होते हैं, ये माइटोसिस बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप कैंसर सेल्स में और म्यूटेशन होके सेल डिवीजन फास्टर हो जाता है। कैंसर सेल्स में फास्टर सेल डिवीजन के कारण वो अपना रूप को बहुत वो कर देता है, विकराल रूप ले आता है, बड़ा सा रूप ले आता है, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को इन चीजों का सेवन नहीं है, और दोबारा गर्म करके खाना कभी नहीं खाना चाहिए।
पूछिए, और कोई क्वेश्चन है क्या आप लोग का? यस, एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, ये लिखा है सर, थैंक यू सर फॉर प्रोटीन, ओके सर, फाइन। अमितेश, यू कैन कॉल मी एंड टॉक टू मी पर्सन, ठीक है? मेरा नंबर रिपीट कर देता हूँ। यस, इस वुमेन हॉर्लिक्स इज गुड, उसका इंग्रेडिएंट पढ़िए, और कुछ केमिकल फॉर्मूला होता है उसको इंटरनेट में डालिए पूनम। उस केमिकल जैसे MSG, मैगी में, चिप्स में, बहुत सारे फ्लेवर में आजकल आता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। पहले मुझे मालूम है 1997 में भोपाल में कैंपस स्कूल में हम थे, तो मैगी और ये आया था चिप्स, अंकल चिप्स, और उसमें लिखा रहता था मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये इसको लोगों को मालूम चल गया है कैंसर कारक होता है। चाइनीज खाना, जो सागर गिरे का खाना खाते हो आप लोग, विष्णु का खाना खाते हो, सब में वो शैतान लोग वो डालते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, क्योंकि ग्राहक अट्रैक्ट हो और बार बार खाए। ब्लड कैंसर होता है, इंटेस्टाइन ट्यूमर होता है, इनफर्टिलिटी होता है, स्पर्म्स का बहुत सारा पब्लिकेशन है हमारा इसके रिलेटेड। तो इसलिए आप भी हॉर्लिक्स, वुमेन्स हॉर्लिक्स को पढ़ें, कोई केमिकल फॉर्मूला है तो उसको डालिए, डाल के उसकी टॉक्सिसिटी रेट पढ़ लीजिए, यदि है तो हॉर्लिक वाले की बैंड बजा देंगे, ठीक है? और आगे चलो, कोई है और? नहीं है? एक और चैट में क्या आ गया? प्रवाल आपका सर, मैडम? Yes, yes. हाँ, यस सर, टेकिंग 4 और यस, चाय का बहिष्कार कर दो। चाय को मैचुरेशन, जो पकी हुई चाय रहती है उसकी मैचुरेशन करते हैं अपन, किसमें? चमड़े के, लेदर के बैग में, तो वैसी गंदा। मिल्क टी बंद कर दीजिए, ब्लैक टी लीजिए। कॉफी ले सकते हैं, ज्यादा नहीं, कोई हार्मफुल नहीं होता कॉफी, लेकिन ज्यादा नहीं रहता। जिनको ल्यूनाटिक प्रॉब्लम है, ल्यूनाटिक मतलब पागलपन का शिकायत है, ज्यादा ही कुछ सुपर फास्ट इंसान लोग हैं, उनको कॉफी ज्यादा नहीं लेनी, ठीक है? ये है ज्योति रावत, ठीक है बेटा ज्योति? दूध का उपयोग भी कमाएगा, पैसा बच जाएगा, ठीक है? इसलिए दूध का चाय बहिष्कार कर दे, क्योंकि दूध में कैसिन प्रोटीन होता है और ये टैनिन उससे बनता है। दोनों ही कोवैलेंट बाउंड है, दोनों साथ बॉईल होते हैं। कितना बॉईल करते हैं पता नहीं, क्या जान निकल देते हैं। उसके बाद सुस्की लगा के पीते हैं, बहुत अच्छा है। एक तो चमड़ा का रस पी लिया, ऊपर से बीमारी भी आ जाएगी, ब्राह्मण कहाँ रहे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ब्लैक टी यूज करें। ब्लैक टी बनाने का तरीका है, पानी लीजिए, शक्कर वालों को शक्कर यूज करिए, नहीं तो ब्राउन शुगर यूज कीजिए। ब्राउन शुगर नशे वाला नहीं, अनप्रोसेस्ड शुगर, ठीक है? नहीं तो बोलेंगे सर ने बोल दिया, मद्रासी ने बोला ब्राउन शुगर, सब लेके आ गए ब्राउन शुगर। प्रबल सर का और नीतू मैडम का दिमाग खराब हो जाएगा। ब्राउन शुगर अनप्रोसेस्ड शुगर आता है, शक्कर आता है ब्राउन कलर का, उससे चाय बना ले। नहीं तो ताड़ का गुड़ या खजूर के गुड़ से, ताड़ की गुड़ से या खजूर के गुड़ से चाय बनाइए। पानी और शक्कर या गुड़ डाल के गर्म कीजिए, खोलते वक्त चुटकी भर चाय पत्ती डाल के बंद कर दीजिए। खोलते हुए आप दालचीनी, तेज पत्ता, जो भी डालना डाल लीजिए, काली मिर्च, सब, अदरक। जब खोल जाए तब जाके चुटकी भर चाय पत्ती डाल दीजिए, नहीं तो ये अकेले अपने आप में ही चाय है, ठीक है जी? धन्यवाद आप सभी का। पूनम धन्यवाद आपका। बोलिए Thank शाहीन, you. अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद, Thank शुक्रिया you. आपका। बोलिए प्रबल साहब, हो गए क्या? आपने कोথায়? Thank you so much, sir. Thank you Yes. for aware all of us about the number of cancers and tell us about the number of steps to cancer prevention, even information about how to reduce your risk of COVID-19 infection. Okay, thank you so much, sir, for giving us valuable time and stimulating speech, sir. No, it's on my this- duty. It's my duty always. Like Yes, sir. On this World Health Day, we pledge that we will give the highest priority to our health Thank in you. all circumstances. मैडम, एक आया है क्वेरी, बहुत अजीब सा। Yes, sir. इट्स वेरी वेरी लाइक मेरे तो माइंड के बाहर चला गया। 10 स्मोकिंग वीड और मैरिजुआना कॉजेस कैंसर। यस, पहले तो ये लेना ही नहीं चाहिए, Yes. थप्पड़ खाओगे जिससे। ये नाम क्या है इसका? एनोनिमस अटेंडी, नाम क्या है भाई तेरा? नहीं तो मैडम, सर वो नाम शो नहीं हो रहा है उसका।
उसका तो और मैं बताता हूँ, गर्दन निकाल दे मार के पिटाई करके, हुक्का बार सब आपको लगता है कि नॉन टॉक्सिक है, नो, दे हैव ए इंग्रेडिएंट, ठीक है, बहुत गंदा होता है चीज, मत लीजिए प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ, है ना। और देशी कपूर जब पूजा में कपूर यूज करते हैं, उसको क्रश करके हर कमरे में डालिए, बहुत सारी बीमारियों से दूर करता है, इन्फेक्शन रेट को, बैक्टीरियल फंगल वायरल इन्फेक्शन रेट को भी कम करता है। तो हर कमरे में सुबह शाम आप जरूर कपूर को जलाइए मत, कपूर को क्रश करके डालिए, ठीक है। आगे समझे। Yes, sir. हाँ, Now I request ये, Director, Center of Science Communication, Mr. Prabal Roy, sir, for the vote of ये thanks. ये कपूर है, Over to you, थैंक sir. यू। Okay. यस सर। Thank you, Bhavna ma'am. जी, sir. And it's my now pleasure, and it's a very pleasant task for placing the vote of thanks. लेकिन जहाँ तक गणेश सर की सवाल है, he will agree with me that आप तक जितना भी बार मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मना नहीं करते हैं, और पता नहीं क्या केमिस्ट्री है, सर तो आ जाता है, बहुत सारे मतलब इतने बिजी शेड्यूल है, आई नो लिटिल बिट ऑफ इट, बट ही ऑलवेज shows his happiness, his eagerness to talk to the audience, to talk to the students, to talk to the society. सर भी जिंदगी भर यही काम करते आए हैं, तो हो सकता है कि इसी की वजह से सर को थोड़ा सा इसमें मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई सोसाइटी से बात करने का, सोसाइटी को ऑनेस्टली सर मुझे बहुत खुशी होती है, आत्मीय खुशी मिलती है कि यदि लोगों से मैं बात करूं। I know maybe I know your chemistry also, that may be the वो राज है। तो चलिए, so formally we from all RNTU family we are placing on record, sir, many thanks to your for allowing us so much of cost your time. आगे भी आपको हम ऐसे ही occasions में आपको बुलाएंगे, और आशा है कि आप भी हमें ऐसा लेक्चर्स देंगे, टॉक देंगे, और बच्चे जिससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ एक बात बोलना सर। यस सर, प्लीज। बस एक सेकंड की बात करूंगा। अभी WHO का एक पब्लिकेशन बड़ा लेटेस्ट, अभी मार्च का पब्लिकेशन है, बहुत बड़ा पब्लिकेशन, यूएसए से और जर्मनी से पब्लिश हुआ है। कोविड वैक्सीन एंड कोरोना वायरस से, दोनों से ही इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यंग बॉयज में आ रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी कोविड पॉजिटिव लड़के हैं आपके ग्रुप में या किसी के भाई बच्चे, प्लीज कॉन्टेक्ट में, मैं डाइट बताऊंगा, उस डाइट को फॉलो करें। मेरे पास अभी मोर देन 1723 केसेस डाइट से मैंने टेलीफोन से करेक्शन किया, और उनके कमेंट्स, फीडबैक भी मेरे पास है। तो वेरी सिंपल डाइट कैन सेव देयर लाइफ। सबकी शादी होनी है, सबको अपनी जिंदगी देखनी, और ये जो ट्रॉमा आ जाएगा इनफर्टिलिटी का, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, फिर बाहर झोला छाप डॉक्टर बैठे हों टूटने के लिए, दुनिया भर का दवाई देंगे, टॉक्सिक और बढ़ जाएगा, वी कांट हेल्प इट। तो इसलिए ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट चालू हो गया है, और चूंकि मैंने भी वैक्सीन लिया तो मैं फेस कर रहा हूँ, मैं पर्सनली भी फेस कर रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि बाकी, क्योंकि जब मेरा हो गया वैक्सीन, उसके बाद 15 दिन के बाद ये रिपोर्ट मैंने पढ़ा, तो मैं नहीं चाहता कि कोई सफर करे, प्लीज। तो जो भी बच्चे हैं, तो कोरोना है या वैक्सीन ले रहा है, तो मेरे कॉन्टेक्ट है। थैंक यू। बोलिए सर। थैंक यू सर। एंड एट द सेम टाइम वी वांट टू थैंक्स आवर ऑनरेबल Chancellor sir, Honorable Vice Chancellor sir, Registrar sir, to all our senior officials to give us this platform, to allow us and to encourage us to hold this kind of program more and more again. So with all our agility, we'll definitely try to hold this kind of program again and again on different topics, maybe, which will definitely, our society will be benefited, and that is our moral duty from this university platform, that there are so many ways and means so that we can serve the society also. So thank you all. And at the same time, our Dean Madam, Neetu Madam, always helpful, always cooperative. Whenever I discuss this kind of proposal with her, she always gives green signal, sir, aap to kariye, and our department will be there with you. So that is wonderful thing. So that is why, that is the only reason we can hold this kind of programs, because it is not it is a teamwork. Actually, it is not a single man's job. So the team made these things possible. So I am very much proud of our team, Faculty of Science, Faculty of Others, and entire RNTU family. And last but not the least, all the participants who have
you joined, and आज का प्रोग्राम अभी तक लास्ट मोमेंट तक भी बहुत ही अच्छा मैंने देख रहा था. It was actually 50 to 60 participants were there, and everybody enjoyed your program, and most of them interacted also. That shows that how eager they were, how interesting, how interactive this program was, and in all so they have made the entire program really successful. So thank you all. And thank you to Bhavna madam, especially Definitely. who had taken time for us. Bhavna madam is भावना always मैडम, आपका there. धन्यवाद. और Yes. नीतू मैडम, आपका तो नाम सुनता हूँ मैं कई बार, बच्चे बताते रहते हैं, तो यू आर वेरी वाइब्रेंट एंड थैंक यू टू योर फॉर सपोर्ट. एंड प्रबल सर, आप सभी को नमस्ते. बच्चों को प्यार, बहुत सारा अच्छे से सेफ्टी से रहो, सेफली रहो. थैंक यू.